लोग अगर कोटा चले जाएंगे, अगर हमारा IIT में हो जाएगा ना, एक साल में इतना पैसा बना लेंगे जितना भाई मैंने खर्च किया. I couldn't read more than half an hour also. Okay. Now I was so close to clear this exam. Now I was again disabled to study. I was somebody who could study whole day, whole night, but now my body is not supporting me to read even 30 minutes. भाई IIT का डिग्री मिल गई, UPSC का टैग मिल गया, तो अब तो शायद मैं अपनी कोचिंग खोल लूँ तो पैसा बना लूँ. See, the whole motive of this podcast is कि मेरी जनरेशन के मतलब मेरी एज के ग्रुप के जो भी बंदे हैं, जो भी पीपल है, तो हमारा मेन प्रॉब्लम है कि हम सारे एम्बिशियस तो है ही. एम्बिशियस मतलब कुछ बड़ा तो करना है, दैट्स फॉर श्योर, बट we don't have the clarity and the kind of mindset we should carry for that. Welcome guys, welcome to my podcast, Run With Me. I'm a 22-year-old youngster just like many of you. I'm a recent graduate from IIT Kharagpur. Presently I'm working as a product manager in a banking firm. So today I'm very special and my first guest, here comes Mr. Prempal Singh Tomar. He's an IAS officer, graduate from IIT Roorkee, and he has a lot of stories to share with us to give clarity and the mindset of a champion. So we'll just start with Hi Prempal. Hi everyone. Hi. So it's pleasure to meet you. बहुत दिन के बाद. Absolutely, bhai, absolutely. I was so looking forward to meet you as well, and I'm so happy that we met. Yeah. Good. So for the audience, I know about you a lot. So for audience, just give a brief introduction. Okay. So guys, like I'm a IIT Roorkee graduate. I graduated in 2018, and in college I was into sports. I was a hockey captain. Then in my final year, I started preparing for UPSC Engineering Services. And then I was able to clear it in the very first attempt. I was the youngest IAS officer in 2018, and currently I'm working in Defense Ministry as an IAS officer. And apparently I'm also working on a venture called Bioman, where we are building a community of people who are passionate about health. So this is what I've been doing as of now. So yeah, that's about me, Arun. Yeah, wow, that's great to hear. And so now we'll start the actual podcast. So now my first question is, थोड़ा सा आपका like we'll keep this podcast very much raw and natural. So it's just like a bhai kind of thing. So who seeks somewhat of inspiration and clarity in life. So हाँ, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका चाइल्डहुड कैसा रहा? हाउ यू फील अबाउट योर चाइल्डहुड? हाँ, इट्स अ ब्रीफ जर्नी. हाँ, I think my childhood has been a real fun. मुझे लगता है कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि कुछ लोग भगवान के फेवरेट होते हैं. I feel that I was that guy who's God's favorite in multiple ways. The family I'm born in, the environment I brought up in, and the things that has happened in my life. So when I look back, I feel that I have been God's favorite child. जैसे मैं मथुरा से belong करता हूँ and I belong to a Jat family. तो मतलब जो हमारा एक जो environment होता है, the kind of environment we bring ourselves up, वो इतना हॉस्टाइल होता है या इतना ऐसा होता है कि आपको स्टेप अप करना ही पड़ेगा अपने कंफर्ट जोन से सर्वाइव करने के लिए. एंड वैसा ही था, मतलब हमारे घर में ना वो कंपटीशन होता था कि इफ यू आर नॉट फिजिकली स्ट्रांग देयर इज नो पॉइंट ऑफ लिविंग दिस लाइफ. यू आर वर्थ ऑफ नथिंग नो मैटर हाउ मच मनी यू मेक, बट आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो, आप एज ए डेयर डेविल्स की तरह अगर एक्ट नहीं कर सकते तो कुछ वजूद नहीं है आपका. तो वैसा ही था, मतलब जैसे हमारे यहाँ ऐसा होता था कि कॉम्पिटिशन होता था मेंटल टफनेस चेक करने के लिए कि इस छत से तू उतर जाएगा क्या, इस छत से तू कूद जाएगा क्या. सो दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट आई हैव ब्रॉट माई सेल्फ अप. एंड उसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव ऑलवेज लिव्ड ऑन एज. मतलब ऐसा है कि अगर मैं इस चीज को करने से मरूंगा नहीं तो कर लूंगा, है ना. मतलब अगर वो बिल्कुल ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है वो नहीं करना, बट उससे कम कुछ भी है तो कर लेंगे, रिस्क तो ले लेंगे. सो दैट वे आई थिंक आई वाज ऑलवेज बीन मेंटली स्ट्रांग. मतलब छोटी मोटी चीजें कभी अफेक्ट करती ही नहीं थी. एंड मोस्ट ऑफ द माय चाइल्डहुड हैज बीन इन विलेज. So this has been my almost childhood. In schooling also, जो गांव के स्कूल होते हैं ना, तो सारे दोस्त मेरे जैसे थे. सब लोग मेंटली इतने स्ट्रांग. तो बाय डिफॉल्ट कहते हैं ना, you become the average of 5 people you surround yourself with. Since majority of the people have been built like me, so I got those values in me. Okay, wow. But since as I feel that I was a God's favorite child, hence I got some breakthroughs. That's why I'm here talking to you. Yeah. So ये how IIT का लाइन में कैसे आ गए आप? हाँ, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है. मैंने जैसे कहा कि आई हैव बीन अ गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, तो मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था, है ना. मतलब जैसे गांव में सब लोग पढ़ रहे होते हैं, मैं भी वैसा ही चल रहा था. एंड हमारे परिवार में सब लोग आर्मी में जाते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन डिफेंस सर्विस, एंड दैट एग्जैक्टली माई फादर ऑल्सो न्यू द पाथ फॉर मी. आई वॉज फिजिकली गुड, हेंस आई वुड हैव बीन इन द आर्मी.
हुआ क्या कि हमारे स्कूल में जैसे मेरे 2 दोस्त थे, वो बहुत पढ़ने में बहुत अच्छे थे, दे वर टॉपर्स ऑफ स्कूल। तो वो कोटा जा रहे थे तो क्या हुआ, वो आखिरी दिन था उनका स्कूल में एंड वो लास्ट बेंच पे बैठे हुए हैं, हम सारे दोस्त ऐसे लास्ट बेंच पे बैठे हुए हैं। तो हमें ऐसे बता रहे हैं कि हम लोग अगर कोटा चले जाएंगे, अगर हमारा IIT में हो जाएगा ना, 1 साल में इतना पैसा बना लेंगे जितना भाई मैंने खर्च किया होगा। मैंने कहा यार ऐसा तो तुझमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा है नहीं जो मतलब इफ यू विल डू इट, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मुझे बड़ा खराब लगा उस दिन। मैं घर आया, मैंने अपने पेरेंट्स को बोला, मतलब ऐसे शाम का टाइम था, मैंने मेरे दादाजी बैठे थे, पिताजी बैठे थे, तो मैंने कहा मेरे को भी कोटा जाने का है, ये हमारे सेठ जी के बच्चे कोटा जा रहे हैं, मेरे को भी जाने का है। तो बोले कि क्या है कोटा में, मैंने कहा IIT है कोटा में। आई वॉज नॉट अवेयर कि वहाँ पर कोचिंग है, आई वॉज जस्ट कि IIT है वहाँ पर। तो बोले अच्छा कि होता क्या है, मतलब कि वहाँ पर पढ़ाई होती है, वहाँ पर नौकरी मिल जाती है अच्छी। तो मैं बैठा हुआ था, मेरे पिताजी शायद बाजार की तरफ गए होंगे, तो वहाँ उनके पिताजी से मिले होंगे जो मेरे दोस्त थे। आई थिंक he got inspired और he got influenced. He came back, he told कि देख अगर तेरे को जाना है तो पैसे का इंतजाम कर देंगे। मैंने कहा अच्छा। तो जो मैंने बताया ना कि मेरे साथ उस दिन बहुत सारे दोस्त बैठे हुए थे, बट दिस इवेंट हैपेंड विद मी ओनली कि माय फादर टॉक टू दैट गाइज फादर एंड ही गॉट इन्फ्लुएंस्ड। उन्होंने आगे बोला जाना तो तू चला जा। तभी हमारे गांव में ना से खारा पानी है, सॉल्टी वाटर है, सो फॉर ड्रिंकिंग पर्पस वी नीड टू ब्रिंग इट फ्रॉम अदर विलेज। तो वो जो दोस्त था वो जा रहा था पानी भरने। मैंने बोला कि भाई मेरे को भी साथ लेके चल। मैंने उसे रास्ते में बताया कि मेरे पापा मान गए, मेरे को कोटा ले चल। तो एंड ही वाज हैप्पी टू काइंड ऑफ अकम्पनी मी। तो उसने मेरा पूरा, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम स्पीकिंग ऑन दिस पॉडकास्ट, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दोज बोथ ऑफ द गाइज, बिकॉज ऑफ देम आई एम हियर। उन्होंने जेन्युइनली मेरी हेल्प करी, मेरा एडमिशन कराया बंसल क्लासेस कोटा में। मुझे 1 महीने बाद मैंने एंट्रेंस देने गया, 2 महीने बाद आई वाज इन द कोटा। So that one discussion on that last day changed entire trajectory. If I would not have been to Kota, I would have been in army as a soldier. Probably not as an officer. My parents thought that I will become an officer, but मैंने ऐसे groom ही नहीं किया था अपने आप को। So I would have been a soldier because that's the path my family knew. Okay, wow, it's a very good story. तो एक बार ऑडियंस के लिए थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो, मतलब ब्रीफ क्लैरिटी दे दो what exactly is IAS, क्या प्रोसेस होता है, क्या what all the process you should have to go through to become an IAS officer, and once you become an IAS officer, what all the touch points, what all the spectrum of things which comes under you. एक बार थोड़ा सा explain. So I'll holistically cover that why I have landed up where I have landed up and how did I reach there. So यूजुअली हम अपनी लाइफ में जैसे अब हम IIT में आ गए, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो कीड़ा रहता है कि दैट वी वांट टू टच अपॉन द एक्सट्रीम्स, है ना। सो वन एक्सट्रीम दैट आई कुड सी फॉर माई सेल्फ वाज अ स्टेटस, a powerful position, and as a kid we just knew, we were aware that if I clear civil services, if I get in, so UPSC is a conducting body which conducts examinations. There are different examinations. One is civil service examination, another is engineering service examination. Through civil services you get into these services, IAS, IPS, IFS, all these. Through engineering services there are different ministries, but it's more of a technical service. So I had a mindset of going for civil services. I thought for civil services I'll prepare civil engineering as my optional, and ये मेरा strong हो जाएगा, और अगर गलती से अगर civil services सस्ता भी है तो engineering services तो है ही, तो नौकरी का टेंशन भी नहीं रहेगा, तो कैलकुलेटिव रिस्क हो जाएगी। तो वो मैंने सोच करके मैंने स्टार्ट की तैयारी कि पहले मैं सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना शुरू करता हूँ, बट अल्टीमेटली मेरा गोल सिविल सर्विसेज ही था। बट देयर सम थिंग्स हैपेंड अलोंग द जर्नी which kind of derailed me. I see when I look back, it was a blessing in disguise, but at that period of time I was devastated because of the conditions that I have faced. Yes. So engineering services in broad what it is, ये technical services है। जैसे 4 branches eligible होती हैं इसके लिए, civil, mechanical, electrical, electronics. Okay. So इसमें different ministries होती हैं, different cadres होते हैं। जैसे अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो उसमें डिफरेंट कार्डर्स है, जैसे IRSE मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर आता है, देन IDSE वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है जिसको MES सर्विस बोलते हैं, देन मॉर्थ के अंदर आता है एक CES सिविल इंजीनियरिंग और सर्विस ऑफ रोड्स, जो मॉर्थ का डिपार्टमेंट है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे, देन एक वाटर मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो ऐसे करके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो UPSC के थ्रू उन डिपार्टमेंट्स में रिक्रूटमेंट होता है, वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू होता है। अच्छा, सो इट्स इन अ वे वन ऑफ द टॉप मोस्ट position of a nation in technical aspects. Absolutely, it's a techno managerial job. Yeah, techno managerial, yeah, that's fine. So yeah, आपकी प्रिपरेशन के बारे में बताइए कि वो एक्चुअली वो थॉट कहाँ शुरू हुआ, क्यों लगा कि यार मैं IAS बनूंगा, why that? तो मैं बताता हूँ कि मैंने कैसे सोचा कि मैं इस कंक्लूजन पे क्यों आया कि मुझे ये वाली जर्नी पकड़नी है।
जब हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हम कॉलेज में आते हैं तो वी सी द रेसेस. तो यूजुअली एक दो रेसेस चल रही होती हैं. एक कोई कोडिंग कर रहा होता है, दूसरे यूपीएससी की तरफ बात कर रहे होते हैं. मेरी तीसरी रेस चल रही थी, मैं हॉकी पे फोकस कर रहा था. आई वाज प्लेइंग स्पोर्ट्स. बट अब क्योंकि टाइम निकलता जा रहा था तो आई वाज सीइंग कि कुछ लोग इंटर्नशिप करने लगे एंड आई वाज क्लूलेस कि ये इंटर्नशिप लग कैसे जाती है, मतलब हु गिव दिस काइंड ऑफ ऑफर्स. तो मुझे मैंने पता किया दोस्तों से, तो कुछ लोगों ने बताया कि भाई कोडिंग वगैरह करनी पड़ेगी. अब अगेन इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज और व्हाटएवर आई कैन कॉल. जो मेरे पास लैपटॉप था वो इतना खराब था कि अगर मैं उसमें कोडिंग करता ना लैपटॉप खराब हो जाता. आई वाज गुड विद टेक्निकल एस्पेक्ट बिकॉज मैंने थोड़ा ट्राई किया था C++ सीखने का, तो मैं मतलब सीख तो जल्दी पा रहा था. बट मुझे फील आ रही थी कि यार मैं जिस तरीके से मैं बड़ा हुआ हूँ ना, मैं एक फील्ड का बंदा हूँ. मतलब मुझे फील्ड में रहना ज्यादा पसंद है. शायद मैं कंप्यूटर के पीछे उतनी जिंदगी को अपनी को देख नहीं पा रहा था उस वक्त कि मैं किसी क्यूबिकल में हूँ, ऑफिस में हूँ. तो मैंने कहा ये वाला तो मुझे फील नहीं आ रहा है ना. दूसरी तरफ मुझे लग रहा था कि हाँ यार ये चीज थोड़ी सी ऐसे पावरफुल लग रही है, भौकाल लग रहा है ना कि आप मैदान में हो एंड यू आर वॉकिंग अराउंड, यू आर गिविंग ऑर्डर्स टू पीपल. तो मैं मेंटली देख पा रहा था कि हाँ मेरी पर्सनैलिटी इस चीज को सूट कर रही है. आई वाज नॉट क्लियर एग्जैक्टली व्हाट द लाइफ गोना बी, बट दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग एट दैट पीरियड ऑफ टाइम. फिर मैंने मेरा दोस्त था, उसने मुझे बताया, सेकंड ईयर की बात थी, सेकंड ईयर का एंड था शायद. उसने बताया कि भाई ये एक सर्विस होती है, इस सर्विस में ना मतलब उसने मुझे बताया कि अगर हमको यूपीएससी साइड जाना है ना तो ये डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं. मुझे काफी फैसिनेटिंग लगी. मुझे सिक्योरिटी वाइज, पर्क्स वाइज मुझे लगा यार ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी है. उस वक्त के हिसाब से मैंने ये सोचा. तो इस तरीके से मैंने कंक्लूड किया कि लेट मी गो फॉर यूपीएससी. यहाँ से सब कुछ मिल जाएगा मुझे जो मेरे को चाहिए. एंड एक माइंडसेट मेरा उस वक्त ये भी था कि I wanted to, I feel as I say, from entire family of mine, I feel that I'm the chosen one who can give that opportunity to my family to uplift the status, uplift the wealth, all those aspects. So I thought कि अगर मैं ये क्रैक कर देता हूँ ना तो मेरे पूरा खानदान का मतलब पूरा स्टेटस एलिवेट हो जाएगा. I probably मतलब मेरे दिमाग में ये चीज भी थी कि हो सकता है सिविल सर्विसेज में लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, प्रॉब्ली मेरी लाइफ बहुत ज्यादा हार्श हो जाए, बट I was okay to live that kind of life, to give a better life to my family. So that's that kind of mindset I had when I started preparing for eventually I prepared for civil services. It was a mid stop for me, engineering services. Yeah, जैसे जनरली बोलते हैं कि you are the one to game changer of the family. आपको वैसा वो पॉवर्टी का I don't say poverty, जो भी स्टेटस था उसके ऐसा स्टेप अप करना है, सीधा मतलब ऊपर ही ले जाना है. Exactly. I felt that I can touch on extremes, so let it be that way. Yes. And आपका प्रिपरेशन कैसा रहा? Okay. How's that? So preparation, I have been always this. If once I've decided, I'll go all in. And there is so it's like before making a decision, I'll do all kind of calculations. I'll ask you to people or whatever. But once I've decided that what I'm going, why I'm doing it, I will not think back. And that's what has happened. मैंने almost थर्ड ईयर में मैं हल्का शुरू कर रहा था, बट थर्ड ईयर के जो हमारे जो समर्स में इंटर्नशिप करने जाते हैं उस वक्त से मैंने प्रॉपर फुल फ्लेजर तैयारी शुरू करी. एंड अगेन दैट वन पॉइंट दैट एज आई हाईलाइटेड इनिशियली कि आई एम द फेवरेट मतलब चाइल्ड फॉर द गॉड. आई वाज नॉट एलिजिबल फॉर द इनिशियल फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज. क्या हुआ कि मैं गेट की तैयारी कर रहा था. मैंने मई 2017 से तैयारी शुरू की. मुझे डेट याद है कि मैं ऐसे 20 मई को घर से आया था. मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि डोंट आस्क मी व्हेन आई एम कमिंग बैक, आई विल कम बैक विद द रैंक नाउ, है ना. तो मुझे बार पूछ के परेशान मत करना कि कब आ रहा है घर. 20 मई से मैंने तैयारी शुरू करी. मैं गेट की तैयारी में लगा. मैंने कहा अच्छे से ऑप्शनल निपटा लेते हैं, गेट से जॉब भी मिल जाएगी और फिर अगली साल से जब कैंपस से निकल जाएंगे तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे. ठीक है. तो वही हुआ कि मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने मैंने अपने कोर सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर किया. शायद अगस्त या सितंबर था, यूपीएससी का नोटिफिकेशन आया. उस नोटिफिकेशन में उस वक्त तक एज का क्राइटेरिया क्या था कि अगर आप जनवरी 2018 में 21 ईयर्स के हो रहे हो तो आप एलिजिबल हो. मैं नहीं हो रहा था. मेरा ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जुलाई में था. तो मेरे दोस्त का फोन आता है कि प्रेम, यूपीएससी ने इस बार एज रिलैक्सेशन दे दिया है और हम लोग एलिजिबल हो गए. With just 10 days I got eligible. UPSC gave the criteria August 2018. I was getting to July. So with just 10 days I got in. Wow. And I suddenly dropped gate preparation. I brought new material of so we had this in engineering services there are 2 parts, technical and non-technical. So for non-technical I brought some material. There's some 5 to 10 books that I brought.
thoroughly went, मतलब I just kind of doubled down my preparation because I was in a gradual mode कि ठीक है धीरे धीरे करेंगे. But the moment I got in as an eligibility, I went all in for the preparation. तो उसके बाद in January, almost 7th January, I can recall, I gave my prelims. Then in Feb, I gave my GATE examination. Around March or April, I got a good rank in GATE. I got All India rank 64 in GATE. And then I got selected in Indian Oil Corporation in around September. We got our results declared. In November 2018, around 8th of November, I got my engineering result also got declared and I got 105 rank. Wow. So from May 2017 to November 2018, this has been the journey. वाह ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. सो अब ये भी बता रहे थे कि ये वाला जो फेज है इसमें आपको काफ़ी सारे डिफिकल्टीज आए, लाइक यू आर फिजिकली इंजर्ड, यू हैव सम प्रॉब्लम विद योर आईज, यू हैव सम प्रॉब्लम विद योर ब्रेन एंड ऑल, बहुत सारे डिफिकल्टीज बताए थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. राइट यार, मेरे साथ क्या हुआ ना कि मतलब स्पोर्ट्स हैज़ बीन समथिंग दैट आई लव, है ना. तो हमारा इंटर IIT का टूर्नामेंट था दिसंबर 2016 की बात है. तो नवंबर 2016 में एंटम एग्जामिनेशन के बाद मैंने सोचा कि मेरा गेम थोड़ा और अच्छा कर लेता हूँ, एक्स्ट्रा प्रिपेयर करूंगा. तो मैं एंटम के जस्ट अगले दिन चला गया एंड माय बॉडी वाज नॉट इन रेस्ट. तो बॉडी फटीग में थी, उसकी वजह से मतलब मसल पुल हो गया, ग्रॉइन में मसल पुल हो गया. मैंने लाइट लिया, बहुत फ्रस्ट्रेशन थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा परफॉर्म करना था इंटर IIT में. बट सिंस आई वाज इंजर्ड, आई कुडंट प्ले वेल इन ट्रेनिंग सेशन आल्सो. मैंने इंटर IIT खेला. इंटर IIT में एक और इंजरी हो गई. आई गॉट माय शोल्डर गॉट डिसलोकेटेड इन इंटर IIT सेमीफाइनल्स में हमारा. तो उसके बाद हम लोग इंटर IIT टूर्नामेंट खत्म करके आए. मैंने शोल्डर को समहाउ रिकवर कर लिया, पर मेरा ग्रोइन का मसल टीयर और बढ़ता चला गया. एंड दैट पेन वेंट ऑन टू द एक्सट्रीम कि मैं हॉकी खेलना मुझे इतना पसंद था कि मैं तब तक रुका ही नहीं जब तक मेरी बॉडी ने जवाब नहीं दे दिया. मतलब आई वॉज एट द पॉइंट आई कुडंट इवन लिफ्ट हॉकी. मैं बैंड होके हॉकी लिफ्ट ही नहीं कर सकता था. अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे ग्लूट्स में पेन हो रहा है, मेरे थाई में पेन हो रहा है, मेरे लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है. अब ये पेन इतना एक्सट्रीम पहुंच गया तो अब मैं फिजिकली मतलब डिसेबल फील कर रहा था. एंड ये मेरे लिए ना बहुत ही ज्यादा ट्रोमेटिक जर्नी रही क्योंकि आई वॉज समबडी हु कैन रन फास्ट, है ना. एंड आई यूज्ड टू लव expressing myself on the ground. Now I was somebody I can't even go on the ground because मैं ग्राउंड में दूसरों को खेलते हुए देख रहा हूँ और मैं खुद नहीं खेल पा रहा हूँ, तो वो फ्रस्ट्रेशन वाला हो जाता है. तो finally I decided that I will not look at the ground now. I will focus on studies and I will focus on healing myself. I was also not finding any ways to cure it. Everybody was just giving different perspective. Somebody was saying it must have been athletic pubalgia, कोई कह रहा है हर्निया है, कोई कह रहा है ब्लड में इन्फ्लेमेशन. मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जा रहा हूँ, किसी डॉक्टर को चमक ही नहीं रहा है कि बॉस प्रॉब्लम क्या है. मैं जबकि बता रहा हूँ कि मुझे ग्रॉइन मतलब ऐसे मतलब मैच के दौरान मुझे ऐसा प्रॉब्लम हुआ है. फाइनली आई गॉट राइट प्लेस टू गेट डायग्नोज. मेरा एक जूनियर था, उसको सेम इंजरी हुई थी. ही मेट मी द भवन. तो उसने मुझे बताया कि सर ऐसे मेरे को भी हुआ था एंड आप PRP करा लो और ये हॉस्पिटल में जाओ पर हो जाएगा. I went there and finally they kind of diagnosed the problem. They gave the right treatment. After certain almost 3 to 4 months later, I could heal myself gradually. मैंने strength training की और वो अभी भगवान की दुआ से बेहतर है. पर वो फेज एक ऐसा आ गया था कि मैं उस वक्त मुझे उम्मीद नहीं नजर आती थी कि क्या मैं वापस से खेल पाऊंगा, क्या मैं वापस से नॉर्मली रन कर पाऊंगा. तो वो ना मतलब क्योंकि उम्मीद नहीं नजर नहीं आती ना, तो आपको बड़ा दुख लगता है कि आपको हर दिन आपको ऐसा लगता है कि ये अब हाउ विल आई लिव द लाइफ. क्योंकि आई न्यू ओनली वन वे टू लिव द बेस्ट लाइफ एंड दैट वाज स्पोर्ट्स एंड दैट वाज गॉट स्टोलन अवे फ्रॉम मी बिकॉज ऑफ द इंजरी. एंड क्योंकि इंजरी थी, मैं जब तैयारी कर रहा था तो मैं फिजिकली एक्टिव नहीं था. तो मैंने जब अपना वर्कलोड डबल किया तो मेरा जो स्ट्रेस है वो भी बढ़ गया. एंड वो स्ट्रेस बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि मुझे याद है अप्रैल 2018 मैं मेंस का एग्जाम देने जा रहा था हरिद्वार से दिल्ली. मतलब हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी क्योंकि मेरा प्रीलिम्स निकल गया था जनवरी में. मुझे अचानक से स्ट्रेन हुआ मेरे ब्रेन में. आई कुडंट रिकॉल, मतलब आई कुडंट अंडरस्टैंड कि मुझे ऐसा हो क्यों रहा है. somehow I was stubborn. मैं गया, मैंने टेस्ट लिखा, मैं वापस आया. I couldn't sleep properly for 2-3 nights. Then I got frustrated. मैंने कहा चलो अब मुझे घर जाने की ज़रूरत है. मतलब मैं शायद बहुत ज़्यादा लोड ले रहा हूँ, थोड़ा ब्रेक लेके देखता हूँ. मैं घर गया, वहाँ पे भी मुझे कुछ आराम नहीं मिला. मैं वापस से कॉलेज आया.
आई थॉट आउट टू हेल विद द इंजरी, लेट्स प्ले। उस वक्त मैं हीलिंग फेज में था, इलाज करा चुका था बट पूरी हील नहीं हुई थी। मैंने कहा अगर दोबारा भी इंजरी हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं, लेट मी फिजिकली गेट एक्टिव। तो मैंने खेलना शुरू किया, विद इन 2-3 days आई स्टार्टेड फीलिंग नॉर्मल। वहां से थोड़ा रिकवरी शुरू हुई, बट फिर हम लोग कॉलेज खत्म हो गया मई में, आई शिफ्टेड टू दिल्ली। दिल्ली का ना तो खाना पसंद आ रहा था, ना एनवायरनमेंट पसंद आ रहा था, ऊपर से मेंस का प्रेशर, ऊपर से मेरी आंख में प्रॉब्लम होने लगी थी लेफ्ट आई में। मैंने डायग्नोस कराया तो उसने मुझे बोला पॉजिटिव पावर है, +1 के अराउंड पावर है, विच यूजुअली यंग एज में नहीं आती है। आई वाज अगेन शॉक्ड कि ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब पता नहीं, या तो स्ट्रेस की वजह से ये सारे सिम्टम्स क्रिएट हुए। बट जब उसने मुझे स्पेक लगाने के लिए दिया, आई कुडंट बियर द पेन, आई कुडंट रीड मोर देन हाफ एन आवर ऑल्सो। नाउ आई वाज सो क्लोज टू क्लियर दिस एग्जाम, नाउ आई वाज अगेन डिसेबल्ड टू स्टडी। आई वाज समबडी हु कुड स्टडी होल डे होल नाइट, बट नाउ माय बॉडी इज नॉट सपोर्टिंग मी टू रीड इवन 30 minutes. So again that point of time mentally I was little broke, but then मैंने कहा ठीक है, let me take some break. मैं वापस घर आया, मैंने कुछ 10-12 दिन अच्छे से खाना पीना खाया, I thought of recovering well. थोड़ी बहुत रिकवरी भी हुई, मैं उसके बाद वापस से दिल्ली आया। उस दिन मुझे बिल्कुल मन नहीं लगा, मैंने अपना सामान पैक किया और मैं रुड़की वापस आ गया। अनऑफिशियली आई वाज स्टेइंग इन रुड़की हॉस्टल विद वन ऑफ माय जूनियर, क्योंकि मुझे रुड़की में कंफर्ट महसूस होता है कि मैं शाम को हॉकी खेलने जाऊंगा, अच्छे से खाना खाऊंगा तो हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग। मैं दिन में 6 घंटे पढ़ता था, 2-2 घंटे के स्लॉट्स थे, हर बार ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद। और इन 2-2 घंटे को अर्न करने के लिए मुझे एफर्ट डालना पड़ता था कि मैं हैवी ब्रेकफास्ट करूंगा, फिर 2 घंटे पढ़ाई करूंगा, फिर नैप लूंगा, रेस्ट करूंगा, लंच के बाद थोड़ा नैप लेके फिर 2 घंटे पढ़ाई करूंगा, फिर शाम को हॉकी खेलने जाऊंगा, फिर खेलने के बाद थोड़ा ब्रेन फ्रेश हो जाएगा, फिर 2 घंटे पढ़ूंगा। इन 6 घंटे में मैं अपने जो कॉन्सेप्ट को रिवाइज करता था, सिंगल क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करता था मेंस का। मैंने कहा जितना मैंने पढ़ाई करी है ना उसको कंसोलिडेट कर दूंगा तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। मैं जब मेंस देने जा रहा था, क्योंकि प्रॉब्लम तो थी, एंड प्रॉब्लम ऐसी थी कि मेरा सर खतरनाक दुखता था। अगर मेरे को लिख रहा हूँ ना तो मेरे को 30 मिनट्स के बाद मेरा ब्रेन एग्जॉस्ट हो जाता था, मतलब सोच ही नहीं पा रहा हूँ। बट आई वाज स्टबर्न कि भाई मैंने इतनी मेहनत करी, जाने तो नहीं दूंगा। तो मैं एग्जाम हॉल में बैठा हुआ हूँ, मेरे को हेडेक हो रहा है। मैंने एग्जामिनर को बोला कि बॉस अगर मैं बेहोश होता हूँ ना, मेरे को हॉल से मत निकालियो, पानी पिला के वापस बिठा दियो, मैं आई विल बी ऑल राइट, कुछ भी नहीं है, केवल हेडेक है मेरा। एंड फॉर्चुनेटली उस लेवल तक, उस एक्सट्रीम तक जाना नहीं पड़ा। ग्रेजुअली मैंने थोड़ा ब्रेक लेकर के एग्जाम हॉल में मैंने आराम से निपटा दिया दोनों पेपर। उसके बाद मैंने किताबें खोली नहीं, मैंने कहा अब नहीं देखूंगा, क्योंकि हेडेक होता था उससे। पता चला मीन्स भी निकल गया। इंटरव्यू के लिए भी मैंने एक कोचिंग का असिस्टेंस लिया। उसके बाद मैंने केवल अपनी पर्सनैलिटी को कंसोलिडेट किया, अपने थॉट्स को कंसोलिडेट किया कि भाई ये चीज़ें मेरे को पता है, ये मेरे बारे में है, मैं इसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करूँगा। आई थिंक आई विल बी एबल टू डू वेल इन इंटरव्यू ऑल्सो, एंड टू सम एक्सटेंट आई डिड एवरेज इन इंटरव्यू, एंड फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड इन सर्विसेज। Again, as I said, I'm the favorite kid of God. I was on the verge. I was like, मेरे ऐसे 710 marks आए थे. I was second last in the general category. और there were some people, there were 2-3 people who got the 710 marks but not in the list. मतलब same marks पर मैं in था and 2-3 लोग अंदर लिस्ट में ही नहीं थे. They didn't got selected. So again, I feel that I got lucky that first and मैं eligible हुआ एग्जाम के लिए, second that मैं लिस्ट में नाम आ गया और बच गया मैं। और भी बहुत miracles हुए going forward कि मतलब which I'll disclose along the journey. वाह। तो मैं ऑडियंस के लिए एक बात बहुत क्लियरली बता देता हूँ कि इतना स्पोर्ट्स क्यों कर रहे हैं भाई। इन IIT इंटर IIT लाइक टॉप नॉच, मतलब आपको अलग ही रेस्पेक्ट मिलेगा। एंड जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे ना, यू काइंड ऑफ, अगर आप स्पोर्ट्स में थोड़ा सा भी इंक्लाइंड हो, यू विल ऑलवेज सी दैट थिंग कि यार ये तो कुछ और है। लेकिन यू इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ कुछ किसी को तो आइडियल मान जाएंगे अपन कि यार ये सीनियर अच्छा है, लाइक बाई 3rd year और 4th year आई हैव टू बिकम दिस, मेरे को ऐसा बनना है, लाइक इतना स्पोर्ट्स खेलना है। लाइक इवन माई पर्सनल स्टोरी, मैं भी जैसे खड़गपुर में था, फर्स्ट ईयर में गया, मैं वाज लाइक डे 1 से आई वाज फिक्स कि भाई एथलेटिक्स ही करना है मेरे को, और कुछ नहीं करना है, लाइक यही सब कुछ है। सो आई शुड नॉट ब्लेम एथलेटिक्स फॉर दिस, बट मैं छग्गी था। लाइक मेरा फर्स्ट ईयर में मेरा CG 6 पॉइंट कुछ था। मतलब मैं इतना ऑब्सेस्ड ये मैड हो गया ना एथलेटिक्स को लेके, यार यही करना है और तो कुछ नहीं करना है। लाइक आई वांट टू बिकम, हमारा सीनियर था जगदीश करके, वी यूज्ड टू कॉल हिम जग्गा। ही वाज द टॉप इन द इंटर IIT इटसेल्फ। मतलब उनका 100 मीटर गोल्ड था, 200 में सिल्वर था, 400 में सिल्वर था। ही इज टू मच गुड इन एथलेटिक्स। तो आई स्टिल रिमेंबर उनका स्पाइक्स भी मेरे को याद है, किस कलर का स्पाइक्स था उनका। आई वांट दैट स्पाइक। उतना याद था मेरे को। लाइक वही दैट काइंड ऑफ ऑब्सेशन यू हैव। मतलब IIT
में वैसा कल्चर है स्पोर्ट्स का लेके, उतना अच्छा कल्चर है विच इज वेरी वेरी गुड. लाइक आई फील वेरी मच फॉर्चुनेट कि यार मैंने इस कल्चर में आया. लाइक आई मतलब इसमें इन्वॉल्व हो मैं करके. Absolutely. हाँ, आपकी IAS का जर्नी हुआ एंड IOCL कहाँ से आया बीच में? Okay. या तो मैंने जैसे एक्सप्लेन किया इनिशियली कि मैंने 2 एग्जाम दिए थे. जनवरी में आई रोट प्रीलिम्स फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड मैंने गेट का एग्जाम दिया, वो भी 2018 वाला. तो गेट के थ्रू मतलब PSU से रिक्रूट करते हैं. सो इंडियन ऑयल वाज वन ऑफ द PSU. आई गॉट सिलेक्टेड in September around. In the November they had the joining. So I got my results of engineering services in November 2018, but the joining came very late. It is almost after 1 year in December 2019. Okay. During this in November 2018 I joined IOCL. Okay. Right? कि because एक साल तो घर बैठेंगे नहीं तो we'll get an experience. So with usually most of the people, those who get selected in both the places, they do like this. Okay. So I also joined in Indian Oil Corporation. So I joined in November 2018 and we did training in Kolkata for around 2 to 3 months, and then in January or February I got posted in Bangalore. So that's about the IOCL that I joined. Okay. Wow. So this is about the just kind of introduction आपकी जर्नी के बारे में बताएं. We'll just step up the game. थोड़ा philosophical आते हैं and I'll just explain the motive of this podcast also. See, the whole motive of this podcast is कि मेरी जनरेशन की मतलब मेरी एज के ग्रुप के जो भी बंदे हैं, जो भी पीपल है, तो हमारा मेन प्रॉब्लम है कि हम सारे एम्बिशियस तो है ही. एम्बिशियस मतलब कुछ बड़ा तो करना है, दैट्स फॉर श्योर, बट वी डोंट हैव दैट क्लैरिटी एंड द काइंड ऑफ माइंडसेट वी शुड कैरी फॉर दैट. एक तो क्लैरिटी कब आएगा when we start exploring and all, when we start exploring all the stuff and all. हाँ, ये मेरे लिए सूट करेगी या हाँ इसमें मैं फाइट मारूंगा करके. एक तो वो क्लैरिटी आ ही नहीं रहा है, दैट इज द मेन पॉइंट. एंड अदर देन दैट, इवन दो क्लैरिटी आ रही है, वो जो माइंडसेट जो होता है ना, सक्सेसफुल बनने का जो माइंडसेट होता है, वो बन नहीं रहा. सो इसका मतलब मेरा मेन मोटिव भी यही था कि आप जैसे मतलब मैंने आपकी स्टोरी पता है, मतलब आई नो यू पर्सनली, सो आई सीन दैट कि यार प्रियंकल सर ने अच्छा खासा फेज में गए थे. ही वाज इन द सेम फेज, इवन इन अ बैड फेज दैन मी. कि क्लैरिटी के अलावा भी काफी सारे प्रॉब्लम्स है, डिफिकल्टीज है, यू हैव क्रॉस दोस थिंग. तो वो कैसे क्रॉस किए, एंड ये मेरा मोटिव था. सो नाउ आई वांट टू आस्क कि फॉर पीपल लाइक मी, मतलब हमारे जनरेशन का, वी डोंट हैव मच ऑफ अ जनरेशन गैप, बट मैच्योरिटी में सब एक जनरेशन आगे हो मेरे से. बट हाँ, तो एक ये है ना, रेजिलियंस बहुत कम है कहीं पे भी, हम ज्यादा टिकते नहीं कि इट्स नॉट अबाउट द कैलिबर वी हैव, वी कैन डू मेनी थिंग्स. मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं हु हैव अ लॉट ऑफ कैलिबर, बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, बट कहीं ना कहीं अब हमको लगता है यार ये मेरे लिए नहीं बना, मेरे को यहाँ रहना नहीं है, आई वांट टू क्विट. थोड़ा सा भी इनकन्वीनियंस आ जाता है ना, वी ऑलवेज वांट टू क्विट, वी ऑलवेज बैक आवरसेल्व्स सेइंग कि यार ये मेरे लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए आई वांट टू क्विट. सो इसमें क्या मतलब रेजिलिएंट रहना कैसे है, या हमारा थॉट प्रोसेस करेक्ट है कि नहीं? तो आपकी क्या ओपिनियन है इसमें? मुझे लगता है कि जैसे कोई भी तुम सफ़र शुरू करते हो, जैसे मैं ना ऐसे हॉकी का एग्जांपल लेता हूँ, है ना, क्योंकि वहाँ मैंने बड़ा प्रैक्टिकली देखा है कि हम लोग जैसे फर्स्ट ईयर में शुरू करें तो फर्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट 20 लोग खेलने आते थे, है ना, 15 से 20 लोग खेलने आते थे. एंड आफ्टर 2 months ऑलमोस्ट 10 क्विट. ठीक है, I survived. Now I'll tell you how do people survive and why do people quit. Yes. So when we start something now, we should be very innocent and we should be very aggressive about it. Because when we are very aggressive about it, we learn a lot. And we, in shorter span of time, we cross that threshold which made us fall in love with what we have started. If you have spent a lot of time, you haven't created any success for yourself, you will doubt कि मेरे लिए काम करेगा कि नहीं करेगा. और आपको, क्योंकि आपको कुछ मजा ही नहीं आया, कोई किक नहीं आया, आपको लगता है ये चीज मेरे लिए नहीं है. कहीं ना कहीं गलती ये हो सकती है कि आपने उसमें उतना जान डाला ही नहीं, उतना ऑब्सेशन दिखाया ही नहीं. अगर आपने उतना ऑब्सेशन दिखाया होता तो आप वो टिपिंग, वो जो पॉइंट है उसको क्रॉस कर चुके होते. एंड एक बार वो पॉइंट क्रॉस हो जाता है ना, फिर देयर इज नो लुकिंग बैक, बिकॉज अब आपने मजा चख लिया है, आपको स्वीट टेस्ट पता चल गया है, अब आपको बार बार चाहिए हो. बट वो पाने तक के लिए तो मतलब आपको होप रखनी पड़ेगी कि वो पॉइंट आएगा. अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव जाओगे तो जल्दी आ जाता है. तो ये कि क्योंकि लोग टाइम देते हैं और उस मजा नहीं आता, तो दे फील कि यार ये मजा नहीं, यहाँ नहीं आ रहा, तो जो आसानी से मिल रहा है वो मजा ले लेते हैं. समझा. सो मतलब अप्रोच में एग्रेसिवनेस रखना चाहिए, सो दैट वी जस्ट फास्ट गेट टू दैट पॉइंट, वो सैचुरेशन क्रॉस कर देंगे. हाँ,
यस अगर वो पॉइंट क्रॉस हो जाता है तो फिर कहानी फिर बदल जाती है आपके लिए. नाइस. एंड सेकंड पॉइंट ये भी था कि एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं. देखो दिमाग में तो बहुत सारे प्लान्स आते हैं, लाइक वी वांट टू डू मेनी थिंग्स कि यार मेरे को ये करना है वो करना है एंड ऑल दिस स्टफ, ये तो रहता ही है. एंड मेरी मतलब जो भी फ्रेंड्स है, मतलब जितना मैं जानता हूँ, सबका प्रॉब्लम ये रहता है कि यार प्लान तो बहुत करते हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते. कि यार मेरे को सब कुछ ही करना है. लाइक इवन दिस पॉडकास्ट मेरे को इतना टाइम लगा, इतना पुश करना पड़ा. आई हैव सीकिंग व्हाट विल से, आई एम सीकिंग मोटिवेशन फ्रॉम हियर एंड देयर. नहीं तू रुक मत जा, पुश कर करके इस पॉइंट तक लाने के लिए आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. मतलब बहुत फाइट मारना पड़ा. तो वो एग्जीक्यूशन में बहुत बैरियर रहता है. तो हाउ टू क्रॉस दैट. गॉट इट. मुझे लगता है कि जब आप शुरू कर रहे हो, किसी की अगर हेल्प ले सको, किसी को ऑब्जर्व कर सको कि बेबी स्टेप्स ब्रेक डाउन करो. कि जैसे मान लो मैं अगेन स्पोर्ट्स का एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मुझे खेलना सीखना है तो मैं सबसे पहले मैं किसी सीनियर बंदे को पकड़ूंगा या कोच को पकड़ूंगा, मुझे बोलूंगा कि आप मुझे एक बार करके दिखा दो. तो मैं आई विल गो इन द माइन्यूट डिटेल्स, आई विल बी वेरी ऑब्जर्वेंट हाउ ही हैज होल्ड एवरीथिंग, हाउ ही हैज bend in his body, how he has hold the stick, how he's transferring the power. So when I observe that, then I implement, I get faster result, better success, right? अगर मैंने बस मैं घुस गया, दिमाग नहीं लगा रहा, तो फिर मेरी प्रोग्रेस ना तो उतनी निकल के आती है, मैं ना उतना सीखता हूँ. दूसरा कि जैसे मान लो मैंने कुछ आज काम किया, तो मैंने आज जो काम शुरू किया है ना, आई हैव कलेक्टेड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बाय डूइंग द वर्क. व्हेन आई गो बैक, इफ आई थिंक अबाउट दैट इंफॉर्मेशन कि क्या उसमें कुछ और कर सकते थे, क्या उसको दूसरी तरीके से सोच सकता था, क्या और बेहतर हो सकता था, तो मैं कुछ रिफाइन करके आऊंगा उस डेटा को. अगले दिन जब मैं काम करूंगा ना, आई विल हैव एन इंक्रीमेंटल ग्रोथ. अगर मैंने आज डे 1 पर मैंने जो इन्फॉर्मेशन गैदर करी है उसको प्रोसेस नहीं किया है, फिर टुमारो आई विल अगेन गैदर सम सेम इन्फॉर्मेशन माइट बी, तो देयर इज नो प्रोग्रेस, यू विल स्टक देयर. आप 4 साल निकाल दो, वहीं रहोगे. आई थिंक ये डिफरेंशिएट भी करता है. जो लोग बोलते हैं ना कि यार मैं इतना अच्छा कर नहीं पाता, मुझे लगता है कि जो आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो उसको प्रोसेस ही नहीं कर रहे हो. जब प्रोसेस नहीं किया तो इंक्रीमेंटल ग्रोथ दिखेगी नहीं आपको, आप वहीं रहोगे वापस से. तो एक बात में बोल रहे हैं तो इसको कंक्लूड कर सकते कि मन लगा दो, हो जाएगा. बिल्कुल. दिल और दिमाग दोनों, मतलब आप एक चीज के सारे से नहीं चल सकते. दिमाग लगाओगे तो वो ऑब्सेशन नहीं होगा, तो आप एक एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालोगे, है ना. और दिमाग नहीं लगाओगे तो फिर दिल लगा के तो क्या ही होगा. फाइन. हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन, व्हाट सक्सेस मीन टू यू. दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन. आजकल के लोगों को सबको लगता है कि यार ही सक्सेसफुल, बट व्हेन दे गेट टू दैट पॉइंट दे फील यार नहीं, ये सक्सेस नहीं था, कुछ और था सक्सेस. तो व्हाट एग्जैक्टली सक्सेस, मतलब आपको पहले सक्सेस का मीनिंग क्या था, उसके बाद चेंज कैसे हुआ, अब कैसा है. Got it. I think this definition keeps on evolving, है ना. जैसे मैं as a student what success was, now how do I see success. जैसे जब हम कॉलेज में थे तो we used to see success कि भाई मैं अगर हॉकी खेल रहा हूँ तो am I able to make my team win, that used to be our success. Then अगर मैं कैंपस के बाद जो usually सब आउटपुट निकाल रहे हैं, मैं उससे थोड़ा सा बेटर आउटपुट निकाल रहा हूँ. अगर जैसे मैं जॉब के लिए फाइट मार रहा हूँ, तो अगर सबका ऑन एन एवरेज 10 लाख का पैकेज लग रहा है तो मेरा 30 का लग गया, तो आई क्रिएटेड सक्सेस, बेटर सक्सेस देन अदर्स. सेम वे अगर लोग यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो मैंने बेटर रैंक निकाल दिया, बेटर डिपार्टमेंट निकाल दिया, तो वो सक्सेस है. और वो जो सक्सेस की डेफिनेशन भी ऐसी थी कि the 99% of the people that we are surrounded with us, how do they see us? For example, let's say you have your employer, I have my employer. If my employer is bigger than you, probably I'm more successful than you. So that was different lens when I was in college. Once I got into job, I realized that this is not what fills me. I realized that for me now the success will always be that do I control my time, do I work on my terms and condition, and do I get to choose the people I want to work with, and do I get to play. Because now since I am in a position where I'm designing my life, hence I would want to give a specific time to sports, and if I'm able to do that, I'm very happy and very successful. That fills me as of now. Yeah, as you said, actually मैं भी इसी पॉइंट पे था कि मेरा एम्प्लॉयर आपके एम्प्लॉयर से बड़े है तो I'm successful.
बट वी ऑल वे फ्रेंड्स एंड ऑल वी केम टू अ पॉइंट कि यार नहीं, वी थॉट दैट इज अ सक्सेस बट एक्चुअली दैट्स नॉट फीलिंग इज कि कहीं तो गड़बड़ है, कुछ तो प्रॉब्लम है. तो लाइक ये ना वी ऑलवेज ट्रीट सक्सेस एज अ कंपैरिजन, कि कंपैरिजन के बेसिस पे ही देखते हैं कि यार मैं सबसे बड़ा हूँ इसलिए मैं सक्सेसफुल हूँ. बट हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम माई लाइफ एंड आई एम एबल टू फील दोज थिंग्स इन माई लाइफ. ये कोई सोचता नहीं है. ऑल मतलब वही कंपैरिजन वाला सक्सेस चल रहा है. सो एक्चुअली हेट दैट पॉइंट. आई वांट टू फिगर इट आउट कि मेरे को लाइफ में क्या चाहिए, व्हाट सो मच इंपॉर्टेंट टू मी. सी एज वी से एवरीथिंग इज अ परसेप्शन, कि कुछ कुछ चीज़ों के लिए आप बहुत वैल्यू ज़्यादा दे सकते हो, मैं नहीं दे सकती. इट्स ऑल अबाउट हाउ आई फील अबाउट दैट थिंग. सो मेरे को वो फाइंड आउट करना है कि व्हाट ऑल द फीलिंग्स दैट फील मी, कि जॉयफुल कौन सा बना सकते हैं मेरे को, वो सब मेरे लाइफ में लाना है. एट द सेम टाइम दैट टू इन अ प्रैक्टिकल वे. ये नहीं कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके पीछे भाग रहा हूँ. प्रैक्टिकली मेरे को उस पॉइंट तक जाना है. तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इस सेल्फ अवेयरनेस बड़ा हेल्प करती है. जैसे आप जब अपने आप को जानते हैं, जैसे मेरे को एक चीज क्लैरिटी बिल्ड हुई कि मेरे को खेलना बहुत पसंद है. आई लव स्पोर्ट्स. इफ आई एम गेटिंग टू प्ले आई विल फील वेरी हैप्पी. नाउ आई वुड वांट टू डिजाइन माय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन सच अ वे दैट इट डज नॉट गेट स्पॉइल्ड. For example, for some people, maybe they prioritize family over everything. Hence, they would want to structure outside world in such a way that they are with the family or near to the family. जैसे बहुत लोग कभी-कभी क्या होता है ना, कि जैसे सिविल सर्विसेज में आ जाते हैं या इंजीनियरिंग सर्विसेज में आ जाते हैं, उनको पोस्टिंग आ गई लेट्स से चेन्नई. आई एम पोस्टेड इन चेन्नई राइट नाउ. सो मान लो उनकी आ गई चेन्नई पोस्टिंग, बट उनके लिए उन्होंने प्रायोरिटाइज कर रखा था कि फैमिली इज एवरीथिंग फॉर मी. Now for them, even you see them as a successful, but they don't see themselves as a successful, right? What they want to do is कि बॉस मेरे को ग्रुप बी की नौकरी दिला दे और मेरे को घर के पास दिला दे तो मैं ज्यादा खुश हूँ. Okay. है ना? Because that's what is they have given priority to in their life. That this is what I value. This is what I want to keep as a center of my life. है ना? और अगर आप थोड़ा सा ज्यादा किसी चीज में हासिल करते हो तो आपको ज्यादा क्लैरिटी बिल्ड हो जाता है. इसे मुझे स्पोर्ट्स से काफी क्लैरिटी बिल्ड हुआ अबाउट हु आई एम एंड व्हाट आई वैल्यू, व्हाट आई लव. सो व्हेन आई वाज क्लियर दैट दिस इज व्हाट आई लव, नाउ आई वांट टू डिजाइन माय लाइफ अराउंड इट. Yes. Now I would want to see how can I do it, what are the ways to do it that I get to keep this thing. यस. एंड आप में मेरे को जो बहुत फैसिनेटिंग थिंग ये लगता है कि यू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. कोई और नहीं करता है. हमारा ऐसा लगता है, मतलब पर्सनली मेरा ऐसा लगता है कि समवन एल्स इज कंट्रोलिंग माय लाइफ. कर तो मैं ही रहा हूँ, बट बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर्स मैं ये सारी चीज़ कर रहा हूँ. एक्चुअली मैं करना नहीं चाहता हूँ. सक्सेसफुल तो बनना है, बट वॉट एग्जैक्टली सक्सेस टू मी इज नॉट परफेक्टली डिफाइंड फॉर मी. वो आई एम गोइंग थ्रू दैट, बट स्टिल ये जो कंट्रोल वाला पार्ट है ना, दैट आई लव. क्योंकि मेरा एक दोस्त है, आई डोंट वांट टू टेक हिज नेम, हमारा पूरा बैच में सबसे ज्यादा पैकेज है उसका, लाइक कुछ 40 लाख का कुछ है उसका प्रॉपर, लाइक ही सो क्लोज टू मी. बट वो ना बंदा खुश नहीं है. वो इसलिए कर रहे कि यार सब कोडिंग कर रहे हैं, आई वांट टू बी टॉप इन दैट, सो वो कर दिया. बट वही ना, आपकी गाड़ी, आपकी लाइफ की गाड़ी का पेडल आपकी पैर पे नहीं है, मतलब यू आर नॉट कंट्रोलिंग योर लाइफ. तो हाउ दैट पॉइंट केम टू, यार मेरी लाइफ मैं कंट्रोल लूंगा. आपके वो पॉइंट कैसे आया? पॉइंट कैसे आया? यस. तो बड़ी फनी स्टोरी है. शुरुआत में तो हम वही खुश होते हैं ना कि जब हमारी नौकरी लगती है, बिकॉज दैट्स व्हाट वी हैव सीन इनिशियली, कि पैसा आएगा, अंधा पैसा बहेगा. सो वैसे ही हुआ कि मैंने पहली जॉब जो ज्वाइन करी बैंगलोर में, मतलब मेरी जो IUCL में फर्स्ट ज्वाइनिंग IUCL में आई, तो मैं ऐसे डे 0 पर मुझे ऐसा हुआ कि यार मैं तो पहले बहुत लोनली फील किया. कि पहले ट्रेनिंग में तो बहुत सारे लोग थे, तो ऐसे कॉलेज लाइफ से चल रही थी. बट जैसे ही वो जब पोस्टिंग आई तो सुबह मैंने देखा सब कुछ जुगाड़ करना है मुझे, मेरी ड्रेस रेडी है कि नहीं है, और फिर नहा के वो मेरे को ऑफिस तक पहुंचने के लिए मेरे को व्हीकल की ज़रूरत है. फिर मैं ऑफिस पहुंचा तो मैं पूरा ऐसे बैठा हुआ हूँ और मैं बस ऐसे इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे कौन बुलाएगा, क्या कोई काम देगा, है ना. मतलब मुझे ऐसे बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस लग रहा था कि मैं मेरे से हो क्या रहा है और मैं ये कर क्यों रहा हूँ. जैसे मैं शाम को आया 6:30 बजे, अब मेरे को अगले दिन भी 10 मतलब जल्दी जगना है तो मुझे 10:30 तक सोना पड़ेगा. 6:30 बजे आया हूँ, हाथ पैर मुंह धोए हैं, एनर्जी नहीं बाकी, तो और जल्दी सोना भी, डिनर करते वो भी टाइम खत्म. मैंने कहा यार ये सेम चीज़ मुझे करनी पड़ेगी 60 साल की एज तक,
और किस लिए? ये 70-80 हज़ार के लिए। मैंने कहा बॉस ये तो भाई ये तो कट गया अपना, ये तो सोचा ही नहीं था। उस पॉइंट में मुझे लग गया इनिशियली वो एक हफ्ते में ही ना वो पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही थी, तो आई वाज कलेक्टिंग दैट इन्फॉर्मेशन, आई वाज प्रोसेसिंग द डेटा, तो आई वाज गेटिंग टू दैट कंक्लूजन कि ये वर्थ इट तो नहीं लग रहा है, मेरे को तो नहीं लग रहा है। अगर बात 70,000 की है तो शायद मैं कहीं और से बना लूं, भाई IIT का डिग्री मिल गई, UPSC का टैग मिल गया, तो अब तो शायद मैं अपनी कोचिंग खोल लूं तो पैसा बना लूं। तो मुझे शायद वो जो फर्स्ट वीक था ना उसी में जो मैंने जो भी कह सकता हूँ इन्फॉर्मेशन गैदर करी, उससे जो प्रोसेस किया उससे मुझे क्लैरिटी हो गई कि शायद मुझे अपनी शर्तों पे काम करना है, मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगा। इवन आई हैड ऑलरेडी क्लियर्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज, आई न्यू इट दैट फंक्शन रिमेन सेम, वेरिएबल चेंजेस। मैं यहाँ पे जो फंक्शन कर रहा हूँ ना वैसा ही रहने वाला है। आई विल बी रिपोर्टिंग टू समबडी एल्स, समबडी विल बी रिपोर्टिंग टू मी, मैं इसकी फाइल उसको खिसका रहूंगा, तो मुझे वो फंक्शन ही मतलब मुझे फंक्शन ही मैंने एक्सट्रापोलेट किया, मैंने कहा फंक्शन ही पसंद नहीं आ रहा। अब मैं कितना भी वेरिएबल चेंज कर लूं, मैं किसी भी मिनिस्ट्री में चला जाऊं, कितना भी कुछ काम कर लूं, मुझे पता है कि ये चीज पसंद नहीं आ रही तो नहीं आएगी। उसी पॉइंट से ना मैं सोचने लग गया कि मेरे को कुछ अपना तो करना है। तो जैसे मेरे पहले दिमाग में आया कि यार PhD कर लेता हूं, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन लग रहा है। तो जब कॉलेज में थे ना तो ये स्टूडेंट के PhD तो नहीं करेंगे यार, PhD तो लास्ट ऑप्शन रहता है, जब लोगों को कुछ नहीं मिलता तब PhD करते हैं। बट उस पॉइंट में मुझे लगा नहीं यार PhD कर लेते हैं, PhD करेंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे, बढ़िया कॉलेज में लोगों को ज्ञान देंगे और मस्त हॉकी खेलेंगे और स्पोर्ट्स खेलेंगे, बढ़िया लाइफ होगी, कैंपस लाइफ होगी। मैंने कहा ये मुझे बहुत सही प्लान लग रहा है। मैंने अपनी प्रोफ को कॉल भी कर दिया, आज रात को कॉल किया, मैं बोला कि हाँ प्रेम क्या हुआ? मैंने कहा सर यू आर वेरी राइट, आई थिंक आई शुड हैव परस्यूड फर्दर स्टडीज। बोला अरे बच्चे क्या हुआ? मैंने कहा नहीं सर, आई थिंक आई हैव रियलाइज्ड दैट प्रॉब्ली प्रोफेसर वुड बी अ बेटर लाइफ। बट देन एंड आई रिजाइन फ्रॉम माय सर्विस इन जस्ट 6 to 7 months। लाइक मेरा ऐसा हो गया था कि मेरा जो डिपार्टमेंट है वो मुझे डिपार्टमेंट अलॉकेट हो गया था एंड आई वाज ओके टू गो इन दैट डिपार्टमेंट। तो मुझे उसका ज्वाइनिंग आया नहीं था, डिक्लेयर नहीं हुआ था। मैंने कहा अब आ तो जाएगा ही, 2 महीने 4 महीने बाद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने रेजिग्नेशन दिया और मैं वहां से आ गया। मेरे पेरेंट्स के लिए हो गया था कि जैसे मेरी ज्वाइनिंग दिसंबर में आई, फॉर माई पेरेंट्स कैलकुलेशन वाज 4 months 4 lakhs का नुकसान। मेरे लिए 4 months की फ्रीडम। मैंने कहा 4 महीने की फ्रीडम, आई एम हैप्पी। तो मैं वहां से रिजाइन मारा, मैं रुड़की में वापस अनऑफिशियली रहा जुलाई 2019 से लेके नवंबर 2019 तक। और वो 4 महीने मेरे जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे, क्योंकि कुछ पैसे थे जो IUCL में कमाए थे, दूसरा ना तो प्रोफेसर का पंगा, क्लास नहीं जाना, तीसरा नौकरी भी सिक्योर थी कि अगली नौकरी भी है। तो मेंटली बहुत फ्री था, बस खेलता था, सोता था, कुछ पढ़ता था, एक चीज एक्सप्लोर करता था। तो उस वक्त मुझे चमका यार ये जो 4 महीने है ना, क्या ऐसी लाइफ वापस मिल सकती है क्या? What do I have to do to kind of keep these kind of days in my life? तो वो ये जो कुछ कहते हैं ना, ये जो इन्फॉर्मेशन से बताती हैं आपको कि आपका सोल बहुत खुश है। अगर आप ये चीज मिल रही है आपको, आप अंदर से बहुत खुश हो। अब आप ये देखना चाहते हो कि क्या मैं अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकूं कि मेरा इंटरनल वर्ल्ड मेरा ऐसे डिस्टर्ब ना हो, खुश रहे। तो वो जो ये जो छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हुए, वहां से मुझे क्लैरिटी हुई कि ये मैं शायद जॉब बहुत लंबे समय तक परस्यू नहीं करना चाहूँगा, मैं नहीं करूँगा। ओके, तो ये बायोमार्क वेंचर का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, और चल कैसा है? Okay. So for everybody's information, so we are building a venture called Biomark, where we are building a community of people who are passionate about health. तो हम लोगों मैंने कैसे स्टार्ट किया कि मैं लुकआउट में था कि यार मेरे को कुछ तो करना है। एंड ये बात है जून की। तो हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई दिसंबर से, 3 महीने हम लोगों ने पुणे में ट्रेनिंग करी और कोविड आ गया मार्च में। मार्च के बाद सब लोग लॉकडाउन में थे, हम हॉस्टल में रहते थे। तो हॉस्टल में मतलब तो भी हम लोग के लिए थोड़ा रिलेटिवली ईज था, क्योंकि बस जो 25-30 लोग थे उन्हीं का था। तो हम लोग काफ़ी खेलते रहते थे। मैं बस साथ में दिमाग सोचता रहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो सॉफ्ट कॉर्नर था कि यार मेरे को वो डिजाइन लाइफ चाहिए। तो कहते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। तो ऐसी वन ऑफ माय बैचमेट मैसेज मी कि प्रेम आई एम वर्किंग ऑन दिस, आर यू इंटरेस्टेड? मैंने कहा बता भाई, अगर आइडिया अच्छा है तो काम करते हैं। एंड दैट्स हाउ आई गॉट स्टार्टेड। आई नेवर लुक बैक आफ्टर दैट। Like I can recall the date and time and like all the discussion, and once I made a decision, मैंने कहा boss, I think I was looking for it, and I never looked back after that.
and never looking back after that. Wonderful. तो थोड़ा सा explain कर दीजिएगा what exactly is Biomark and what you are presently doing in that. Okay. So it's a community. So first of all, like I'll just give you a brief background now that why it has got built. So in our society, we know a very big common problem that are chronic conditions of people having lifestyle issues. Say thyroid, diabetes, obesity, PCOD. All these issues are there. These issues are there because fundamentally the whole country is nutritionally unaware. Nobody knows what to eat, what not to eat. And there is a huge mismatch between diet and lifestyle also. कि जैसा खाना पहले लोग खाते थे अभी भी वैसा ही खाना खा रहे हैं और ज़्यादा गड़बड़ हो गया बट लाइफस्टाइल तो बहुत चेंज हो गई है. पहले बहुत फिजिकली एक्टिव थे अभी बहुत सेडेंटरी है उसकी वजह से ही सारी क्रॉनिक कंडीशंस आ रही हैं. एक और पॉइंट है कि all the information is available on internet but the country is obsessed with spoon feeding. लोगों को कोई चाहिए हैंड होल्ड करने वाला. Right? So उसी चीज के लिए what we are doing is we are trying to build a community where we are building a community of people who are passionate about health, who build their knowledge in the domain of functional medicine, and they build their brand, they create their influence, and they help people. They handhold and they help people reverse all these chronic conditions. So this is what we are doing, and that's what every individual do in our community. Everybody is a independent entrepreneur. Okay, wow, very important topic है. Like basically, it is very much necessary. Like we all feel कि हाँ पहले मेरे दादा तो यार 95 years के थे अच्छा खासा चलते थे and all. मैं क्या है मतलब 4 दिन ऐसे ऑफिस में बैठने के बाद I feel like यार बैक पेन हो रहा थोड़ा सा ऐसा. फिर रीजन भी है ना जैसे बहुत लोग आर्ग्यू करते हैं कि मतलब हमारे दादाजी और वो तो मतलब इतना 90 साल तक जिए उनको कोई बीमारी नहीं बहुत जान थी और अभी तो ये हो रहा है और अभी विटामिन्स खाना और ये फूड इतना कॉशियसनेस क्यों है कि बस रीजन समझना पड़ेगा. एक तो आपकी लाइफस्टाइल आप उतना फिजिकली आप मसल रिटेन नहीं कर रहे हो आप इतनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो. दूसरी बात अभी आप जो खा रहे हो फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम द सॉइल. Now you must have heard about a campaign called Save Soil, right? Yes. So the soil is dying. The nutrients which is supposed to come from the soil is not getting into food. So what you are doing is you are overfed, undernourished. आप खाना तो खा रहे हो पेट तो भर रहे हो but जो आना था but nourishment नहीं हो रहा और nourishment नहीं हो रहा वो it is getting reflected in your body over a period of time. And that's why people at the age of 20 they feel like they are in their 40s. They don't have an energy. जबकि जैसे मेरे दादाजी बोलते हैं 20 से 25 साल के थे तो when he used to do so much of work people used to call him कि तो हनुमान है मतलब he was like that kind of पहलवान आदमी and he's still alive and he's around 98. Okay. है ना no chronic condition. है ना reason being because the way you people used to eat the people used to build themselves up and the kind of quality their food had that they still are able to run on the fuel that they have fueled themselves back then. तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गोइंग फॉरवर्ड. मस्त इनिशिएटिव है आपका लाइक व्हिच इज वेरी मच नेसेसरी लाइक बहुत अच्छा डायरेक्शन में जा रहे हो आप. एब्सोल्युटली हाँ. एंड आपको ये कभी लगता है क्या कि कुछ ऐसी चीज़ है सारी दुनिया एक जैसी देखती है बट आई सी इट फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव. ऐसी कोई चीज़ है क्या? लाइक सारी दुनिया इट मे बी मेजॉरिटी आई डोंट से होल वर्ल्ड बट हाँ मोस्ट ऑफ द पीपल उस चीज़ को ऐसे देखते हैं बट आई सी इन अ वेरी डिफरेंट वे. मेक सेंस. आई थिंक एक चीज जो मेरे लिए अभी चेंज हुई है जैसे नाउ the definition of success. Now majority of people see that if your employer is bigger than mine then I'm probably more successful than you. Reason being because 99% of the people that we are surrounded with are employees. So they will think from that lens only. For now I feel that now I measure success with that contentment that the person do have the control of their life ना. So now I'm able to differentiate कि हाँ अगर मैं किसी को देखता हूँ कि अगर इसके पास लाल बत्ती की गाड़ी है पीछे सिक्योरिटी गार्ड है नो ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं ये तो बाहर का दिखावा है. He might not be successful because अब वो मैं मतलब फिल्टर आउट कर पाता हूँ कि is it a real success. Yes. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि एक अभी रिसेंट की बात है तो इन वन ऑफ द प्लेस आई सॉ डायरेक्टर्स कार बहुत एकदम क्लीन एकदम चमकी हुई एंड द गार्ड्स आर आउट एंड एवरीथिंग एंड देयर वर फ्यू पीपल हु वर विद मी दे वर वेरी फैसिनेटिंग कि भाई देख क्या सही चीज़ है. मैंने कहा भाई बहुत सही चीज़ नहीं है. आई नो व्हाट पेन इट ब्रिंग्स अलॉन्ग विद इट. इट माइट लुक वेरी फैसिनेटिंग वेरी क्लीन बट व्हाट पेन इट ब्रिंग्स यू डोंट नो. So I think that lens I have got
that now I'm able to differentiate is this the life fulfilled life? It is a life of satisfaction. There is a difference in a life you are leading. Is it a satisfied life or is it a fulfilled life? So that differentiation I have got over a period of time. मतलब basically now we can say कि like you are above that, कि you can easily let go. Like let go करना is so tough. Now you can easily let go because for the things which you wanted. Yes. मेरे को जो चाहिए उसके लिए मैं छोड़ सकता हूँ. Yes. I have that capacity now. Yes. That capacity is the difference between you and many of others. Yes. Nice. And how important is that IIT wala tag? Which is a very burning question nowadays. Of course, I want to ask this question. How important is that IIT wala tag? मतलब I don't say tag, but that experience of that 4 years of your IIT. Like अगर आपको अभी chance देंगे with all the knowledge you have and they'll say कि we'll take off that IIT वाला part from your life, is that okay for you? See, tag you can take it away from me at this point of time with the experience that I have, but I would want to be in this kind of campus with this kind of people with this kind of opportunity. So I think IIT has been a wonderful place. Had I this awareness, I would have done much beyond what I've done. But I'm satisfied because of the people that I've met. And it's always about the people. And that's what IIT do. It kind of bring good quality people in one place. Now it's not about the professor. It's not about the teaching curriculum and all. But it is about the people. It is about that extracurricular that we do. So that is amazing here. Yeah, that I also accept. Because even for IIT KGP, see, from IIT wala lens, they can say me as an average student. मैं उतना कुछ मचा नहीं था. I was like मेरा 7 point something is my CGPA and very much happy with it. But IIT वाला जो environment रहने से मेरा ये चेंज हुआ ना, मेरे सपने बहुत बड़े हो. Yes. वो हुआ था मेरे लिए यार नहीं सक्सेस कुछ और होता है, कुछ करना है तो बड़ा करना है. बड़ा क्यों करना है? क्योंकि यू मेट विद दोस पीपल. लाइक आई यूज्ड टू हैव पीपल, मतलब मेरे फ्रेंड्स जो बहुत सारे स्टेट से है, केरला से थे, तेलंगाना से, हरियाणा, राजस्थान, असम, मेघालय, सबसे थे. आई वाज लुकिंग फ्रॉम देयर लेंस. उनका परसेप्शन देख के यार ये तो मैं सोचा ही नहीं ऐसा भी कुछ होता है. सो उतना लेंस मेरा इतना बदल गया एंड नाउ आई एम फीलिंग यार कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है. कि लाइक मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए. एट द सेम टाइम आई शुड क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी. वो वाले फीलिंग बहुत बढ़ गया. आई थिंक द मेन पार्ट इज दैट अवेयरनेस. आई डोंट थिंक कि IIT में अगर मैं नहीं रहता तो वो वाला अवेयरनेस नहीं आता था मेरे को. एंड ऑफ कोर्स यू सेड पीपल, क्वालिटी पीपल मिलते हैं आपको, बहुत अच्छा क्वालिटी मिलता है. लाइक आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द पीपल आई मेट इन IIT. That's so wonderful experience. Even though हमारा 2 साल ऐसा कोविड में चला गया, but still मैं जितना भी 2.5 to 3 years रहा था KGP में, that was a fantastic experience. मतलब ऐसा पूरा क्या बोलते हैं लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बोल सकते हैं. क्योंकि मेरा फर्स्ट ईयर एंड फोर्थ ईयर का मेरा जो परसेप्शन एंड मेरा माई लेंस टू लुक एट थिंग्स बहुत ज़्यादा बदल गया. बहुत ही ज़्यादा बदल गया. एंड लाइक आई केम टू अ पॉइंट कि मेरे यार काम कुछ भी अगर आप ड्रीम बना लोगे ना कर लोगे. इट्स जस्ट आपको एक अच्छा प्लान चाहिए, थोड़ा कंसिस्टेंट चाहिए, एफर्ट्स देंगे तो हो जाएगा. बट ड्रीम बनाना ही क्यों है, वो वाला थॉट मेरे को IIT ने दिया. पर्पस क्यों चाहिए लाइफ में? हाँ, पर्पस क्यों चाहिए. यस, फेयर पॉइंट. बिल्कुल यार, लोग ही हैं सारा कुछ. मतलब क्योंकि आप बहुत ही नाइव आते हो, बहुत ही फ्रेश आते हो, और आपको चीज़ें टकराती हैं लोगों के थ्रू. जैसे मैंने बताया ना कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि यार UPSC एक चीज़ होती है, उसमें ये करेंगे तो ये हो जाएगा. मैंने अच्छा, मैंने कहा तो सही लग रहा, बात तो सही कर रहा है. ये किया तो जा सकता है. अगर तू कर पाएगा तो मैं भी कर लूँगा, क्योंकि वो तो भाई इतना कॉमन सेंस है अपने पास. तो आई थिंक लोग आपको रास्ता दिखा देते हैं. क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि मेरे परिवार में किसी ने वो रास्ते देखे ही नहीं, तो कौन दिखाएगा, है ना. मुझसे बेहतर लोग हैं जिनको ऑलरेडी वो रास्ता दिखाया हुआ है या जिनके पेरेंट्स में वो लोगों ने देखा हुआ है. तो वो लोगों का सारा फर्क जो है लोगों का है यहाँ पर. वो तो या एंड जो एक्सपीरियंस है, लाइक आई फील सो ब्लेस्ड टू बी इन IIT. क्योंकि मेरी फैमिली में हमें नाम तो फर्स्ट IIT है. मेरी फैमिली में कोई IIT है ही नहीं. सो वी आर ऑल दैट स्टक इन तेलंगाना. आई डोंट से स्टक कि हमको जाना भी नहीं है, तेलंगाना से बाहर जाना भी नहीं है. बट बिकॉज ऑफ IIT एंड ऑल मैं बाहर आया, दूसरा स्टेट में आया, बाकी लोगों से मिला, बाकी सारे एक्सपीरियंसेस लिया. इवन माई जॉब इज इन जयपुर नाउ. सो इतने सारे लोगों को मिला, इतना एक्सपीरियंसेस लिया. देन माई परसेप्शन टुवर्ड्स लाइफ कंप्लीटली चेंज. आई नेवर एवर थॉट कि मैं अगर तेलंगाना में वहीं रहता तो ये वाला परसेप्शन बिल्कुल नहीं रहता मेरा. बिल्कुल. हाँ, इवन मतलब फाइट कैसे मारना है, क्यों फाइट मारना है, वो सारे रीजंस मिल रहे हैं मेरे को अभी. हाँ, बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस.
इवन मेरे को एक छोटा सा एक एग्जाम्पल ऐसा स्टोरी है कि बेसिकली आई एम फ्रॉम तेलंगाना. जनरली क्या होता है साउथ में हिंदी बोली नहीं जाती, कंप्लीट जीरो होता है. सी इवन मेरा पूरा लाइक जीरो मतलब डे पूरा बॉर्न एंड बॉटअप पूरा तेलंगाना में हुआ था. तो आई डोंट नो बिट ऑफ हिंदी, इवन दो हमारा सेकंड लैंग्वेज हिंदी है. आई डोंट नो मतलब इवन अ बिट ऑफ हिंदी. सो आई वाज लाइक सो कंफ्यूज. मतलब मैंने कैंपस आया, बाकी सर ऑफ कोर्स बाहर के स्टेट्स वाले रहेंगे, all of them are speaking in Hindi. I don't know मतलब थोड़ा सा भी नहीं पता, लिटरली जीरो. बट मैंने तो ये शॉर्ट था कि एथलेटिक्स तो करना है मेरे को, गो हेल विद हिंदी. मेरे को हिंदी से कोई लेना देना नहीं है, एथलेटिक्स तो मेरे को करना ही करना. बट सारे टीम में हमारे नॉर्थ इंडियंस से जनरली हु ऑलवेज स्पीक हिंदी. सो मैं पहले बात ही नहीं करता था किसी से बात ही नहीं करता था. तो एक दो तेलुगु के मेरे मतलब एल्डर्स से सीनियर्स थे तो उनके साथ थोड़ा थोड़ा बात करता था. बट स्लोली क्या हुआ, आई स्टार्टेड जैसे आपने बोले कि स्टार्टेड ऑब्जर्विंग पीपल कि वो बोल क्या रहे. तो मैंने क्या किया उसमें कि पहले 3-4 वर्ड्स मैंने देख लिया कि ठीक है, ऐसे जो टेम्पलेट वाला वर्ड्स है ना, आई स्टार्टेड टेम्पलेट वाला यूज किया एंड आई यूज्ड टू वेट फॉर दैट मोमेंट जब मैं वो यूज कर पाऊंगा कि हाँ मोमेंट है, कम ऑन यूज कर, ठीक है. मैंने बोल दिया ऐसे, आई फील हाँ थोड़ा सा सीख लिया मैंने. ऐसे स्लोली जाके मेरा पूरा ये हो गया. देन आई गॉट टू नो कि यार कुछ भी सीखना उतना टफ नहीं है, आपको बस थोड़ा इंटू चाहिए, सीखना चाहना चाहिए, मतलब थोड़ा एग्जीक्यूशन चाहिए. एंड कुछ भी ऐसा प्लान करके नहीं होगा. जब एग्जीक्यूशन में आप अंदर घुसोगे ना, जब मैदान में उतरोगे तभी जाके कुछ आइडिया आएगा. So, अभी तो बहुत अच्छी हिंदी बोलता है भाई. बढ़िया. एंड हाँ, जैसे अपन पीपल का बात उठाए, वी सेड कि पीपल आर एवरीथिंग, दे मोल्ड यू एज अ पर्सन. तो जनरली आपने भी जैसे बोले कि वी आर एवरेज ऑफ द 5 पीपल अराउंड यू. सो देखो फ्रेंड्स बहुत होते हैं, मतलब फ्रेंड्स तो ऐसे बन जाते हैं. हाउ डू यू चूज दैट क्वालिटी फ्रेंड्स? यार ये बंदा सही है, आई डोंट वांट टू लूज हिम, आई डोंट वांट टू लूज हिम. ऐसा सिलेक्शन कैसे आता है? किस पॉइंट के बेसिस पे जज करते हैं बंदे को? राइट यार, जैसे मुझे लगता है जैसे आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि कॉलेज में आपको अपने अच्छे दोस्त मिल जाते हैं. yes. कॉलेज के बाद वो लोग मिलना बहुत मुश्किल होता है. रीजन भी क्वालिटी कम्स विद क्वांटिटी. तो कॉलेज में 1000 लोग हैं तो कहते हैं ना कि चोर मौसेरे भाई. तो हमको अपनी पर्सनैलिटी वाले लोग दिख जाते हैं कि इनके साथ हम वाइब कर रहे हैं. तो आप ऐसे उनमें से कुछ लोगों को भले ही ब्रांच दूसरी हो, आप उनसे कनेक्ट करने लग जाते हो. उसमें से आप फिर ये देखते हो कि देख बंदा दिल का कौन सा अच्छा है. है ना, कि मतलब अगर कल को कोई दिक्कत होती है कि कैन आई ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली, वो आप थोड़ी कुछ बेसिक छोटे इवेंट से जज करते हो. वो जो ट्रस्ट है वो अगर आपको एक बार दिख जाता है कि हाँ इस बंदे को मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, ये दिल का बहुत अच्छा है, आई वुड वांट टू कीप दैट पर्सन इन माय लाइफ, आई वुड वांट टू इन्वेस्ट इन दैट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप. Probably I would be fulfilled within myself. I might never need their help. I would be that friend for them that they can vouch on. If कहते हैं ना कि अगर कल को लड़ाई होगी तो पहली गोली तेरा भाई लेगा. I would want to be that friend to them. The people that I feel that they are genuinely good from heart. And ये चीज जो गेज करना ना कि क्या ये दिल से अच्छा है, या I think ये खुद से पहले डू यू नो योर सेल्फ वेल, देन ओनली यू कैन नो यू कैन आइडेंटिफाई समबडी एल्स. है ना, तो ये है कि हाँ मैंने खुद को काफी हद तक जाना है because of all the journeys I have been. So I understand कि कहाँ मतलब हम how do we think. So when I see somebody thinking very selflessly, I feel कि इस बंदे को मुझे अपनी जिंदगी में रखना है because he inspires me. I would want to be that person. I would want to be like that. है ना, and I would want to invest in that kind of friendship. Yeah. But more than that, I would want to be their best friend. Then they can rely on. Yeah, very good point. काफी अच्छा point है ये. Like I'll just definitely involve in this my life. तो slightly controversial question है. पूछ ले भाई, सब पूछ ले. So my point is कि how strong should be a reason for you to quit IAS? क्योंकि सी दैट कम्स विद अ लॉट ऑफ पेक्स एंड उसको छोड़ने के लिए बहुत सारे गट्स चाहिए, बहुत ज्यादा गट्स चाहिए, क्योंकि यू आर लिविंग अ लॉट ऑफ पर्क्स. आपका मतलब रेपुटेशन थोड़ा सा गिर जाएगा क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट पोजीशन यू हैव अ लॉट ऑफ रेपुटेशन स्टेटस, वो जो इमेज आप जो कैरी करते हो दैट विल बी हैम्पर्ड, दैट विल बी टेकन अवे फ्रॉम यू, बट यू स्टिल वांट टू डू समथिंग एल्स. मतलब वो रीजन कितना स्ट्रांग होना ताकि वो ठीक है ये छोड़ सकता हूँ. व्हाट्स दैट? मतलब आई थिंक मैंने जैसे बताया कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जो मायने रखता है इस वक्त वो है कि मेरी फ्रीडम है ना, कि मैं जब सुबह उठूँ तो मैं
मेरे दिमाग में ये ना आए कि यार वापस से उसकी शक्ल देखनी है क्या, वापस से वही उन्हीं लोगों के बीच में जाना है क्या। तो मेरे लिए ये चीज़ मतलब मेरे को केवल इसी चीज़ से मेरे को हो जाता है कि हाँ अगर मैं उस पोजीशन में पहुंचा रहा हूँ वेयर फाइनेंशियली आई एम नॉट वरीड, तो स्टेटस वाइड माय लव टैंक इज फुल, जितना स्टेटस चाहिए था उतना हो गया। नाउ आई एम नॉट अटैच्ड विद द रेपुटेशन दैट मच, आई एम अटैच्ड विद this love for freedom. So I think this is enough fuel for me to take any big decision. I won't say that I will quit or when I'll quit, but yes, this is enough for me to make a change that shall I be independent, shall I be away from the current status or the current so now it's all about fulfillment कि आपको लगना चाहिए कि this is my purpose driven journey जा रही है मेरी, I'm getting fulfilled, so if all of this is there is no point of repetition, you are saying, right? yes मतलब eventually now if I see तो मैं किस लिए हूँ for that 70,000-80,000 that government pays me, है ना। जितना somehow जितना स्टेटस क्रिएट होना था वो तो उसी दिन हो गया था जिस दिन सिलेक्शन हुआ था, है ना। अब तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मेरा प्रमोशन हो रहा है नहीं हो रहा है ना। तो वो है कि मुझे उतना ज्यादा वैल्यू अपने लिए नहीं दिखता है रुकना। अगर मुझे लगता है कि मेरा टाइम ज्यादा जा रहा है सर्विस में और मैं उतना उस टाइम को यूटिलाइज करके मैं अपना पर्पस फुलफिल कर सकता हूँ, और मैं जब अपना पर्पस फुलफिल कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत लोगों की लाइफ बदल रहा हूँ, तो दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर द वर्ल्ड दैट आई एम लिविंग इन राइट नाउ। तो आई थिंक दिस इज फॉर मी दैट वन थिंग वुड बी इनफ टू मेक एनी बिग चेंज। वाह, दैट्स सो गुड। सो एंड एक और चीज़, आप ऐसा कभी सोचते हो क्या कि कुछ भी काम करने से पहले will you think कि यार 60-year-old myself will he be happy me doing this thing, ऐसा कभी सोचते हो क्या आप? क्योंकि मेरे एक ऐसा I don't know it's a kind of एक और सा थॉट है कि always think कि यार आफ्टर 60 years ना मैं खुद पे जब बुक लिखूंगा वो बहुत अच्छी रहनी चाहिए, इतना इंटरेस्टिंग रहनी चाहिए कि सब मूवी बनना चाहिए, ऐसा लाइफ चाहिए मेरे को, इतना इंटरेस्टिंग एंड ऑल कुछ तो होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने क्यूबिकल में बिता दिया पूरी 60 years का लाइफ, कुछ तो पैसा कमाया, या मनी इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, आई नेवर एवर डिनाई दैट, क्योंकि आपका पैशन को फ्यूल करने के लिए ना पैसा चाहिए, पैसा इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, बट अलॉन्ग विद पैसे आई वांट दैट इंटरेस्ट इन माय लाइफ। मतलब मेरी लाइफ इतनी एक्साइटिंग होनी चाहिए ना कि हाँ यार 60 years के बाद मैं बुक लिख रहा हूँ तो मस्त रहना चाहिए। सो आप कभी सोचते हो क्या ऐसे? यार मुझे लगता है कि मैं अभी भी जैसे मैं हर दिन खेलता हूँ, मेजॉरिटी ऑफ द डेज, देयर विल बी हैंडफुल ऑफ द डेज ओनली व्हेन आई डोंट प्ले। तो मुझे लगता है कि जैसे अगर मैंने खेल लिया ना तो मेरा आज का दिन पूरा हो गया, अब इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता था। तो खेल लिया और बाकी मैंने अपना काम कर लिया, और जब मैं काम कर रहा हूँ तो मैं अगर मैं ग्राउंड में खेल रहा हूँ तो भी अपना एक्सट्रीम टच कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ तो भी अपना एक्सट्रीम टच कर रहा हूँ, तो एवरी डे इज गेटिंग मैक्स्ड आउट। सो दैट वे आई थिंक व्हेन आई लुक बिकॉज ऑफ दिस मैक्स आउट there's things which is happening, there are magical things happening, and when you write a journey you want those magics to get reflected, right? Yes. So I think that inherently comes to you when you take decisions which might not be very okay for majority of the people, but you feel your gut feel is there कि यार ये मैं कर लूँगा because I love to be living on edges, so somewhere you have those magical moments for yourself. Yes. And majority of the time you have those magical moments for yourself, hence if you want to write a story on it, it might look more magical, right? Yes. Because there are more events similar to that. Yes. So देखो इतना अपना conversation हो ना, I'm feeling कि like जितने भी मैं जिसी भी ओपिनियन दे रहा हूँ, किसी भी सिनेरियो दे रहा हूँ, everything you are end of the day linking with that sports only. And for every point you are linking that with sports. तो आपकी लाइफ में स्पोर्ट्स का उतना prominence क्यों है? स्टार्ट कहाँ से हुआ है? Right. यार मैंने कहा मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि मैंने एक बार मतलब अगर मैं कहीं गया या मैंने उस चीज़ के बारे में सोचा और मुझे ठीक लगी तो उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वैसे ही हुआ कि जब हम कॉलेज में आए तो मुझे कोई स्किल नहीं आती थी ना, बिल्कुल फ्रेश था, ना तो वर्बल कम्युनिकेशन, ना रिटन कम्युनिकेशन, ना कोई कोडिंग। तो मुझे पता था कोई क्लब लेने वाला नहीं है। फिजिकली आई वाज गुड, तो मैंने आई थॉट ऑफ गोइंग इनटू स्पोर्ट्स। बाकी स्पोर्ट्स में भी नहीं कुछ खेला हुआ था। टेक्निकली आपको क्रिकेट अच्छा खेलना आना चाहिए, आप टेनिस खेलना चाहिए, वॉलीबॉल वगैरह वगैरह। तो मुझे वहाँ पर भी बहुत भीड़ दिखी तो मैं नहीं गया। मैंने देखा हॉकी में कोई नहीं जा रहा बहुत दिमाग लगाया मैंने कहा हॉकी कोई नहीं खेल रहा, मैंने कहा यही खेलेंगे। वी वेंट फॉर ट्रायल्स एंड ऑन द डे वन दे पिक मी अप बिकॉज ऑफ दे वर मोस्टली मतलब क्योंकि कम ही लोग थे तो दे पिक मी अप एंड माय स्पीड वाज गुड। तो मैंने कहा चलो कल से खेलना शुरू करते हैं।
from the next day I started playing. I had a good speed. Coach started telling हाँ अच्छा, मतलब कोच उस वक्त तो कोच थे नहीं, हमारे सीनियर्स थे, तो दे स्टार्ट अप्रिशिएटिंग यार डूड का लड़के खेलता अच्छा बढ़िया है. मैं डेली आता था, फुल जान डालता था. नाउ आई फॉल इन लव. इट बिकेम ऑब्सेशन, इट बिकेम पैशन. मैंने मतलब मैं खेलता था, रात में उसके बारे में सोचता था, फिर अगले दिन खेलने आता था, रात के बारे में सोचता था. क्लासेस जल्दी खत्म हो गई तो जल्दी ग्राउंड आ जाता था. तो एक तो इंक्रीमेंटल ग्रोथ दिख रही थी, लोगों का अप्रिशिएशन दिख रहा था, आइडेंटिटी क्रिएट हो रही थी कि एवरीबडी न्यू कि अच्छा ये प्रेम है जो हॉकी वाला बंदा. तो वो सारी चीजें मुझे बड़ी फैसिनेटिंग लगी इन द वेरी फर्स्ट ईयर. और फिर उसमें जो मैंने कहा ना कि उससे बहुत सारी चीजें इवॉल्व करी. स्पोर्ट्स में मुझे काफी कुछ चीजें ऐसी और फैसिनेटिंग लगी कि यार मैं जिन लोगों के साथ खेल रहा हूँ, दे आर पीपल हु आर बेटर देन मी इन मैनी ऑफ द एरियाज. सो आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग पीपल वेरी वेरी क्लोजली. वहां से मुझे 2-3 चीजें जो मेरे लिए ऐड हुई. पर्सनैलिटी, that I could interact with anybody with the same confidence. Second year we started leading first year. So we started building leadership skills. We became mentors. And because we have gone through the journey, hence we knew the pain. So we could handhold first year. Yes. तो वो leadership जो वो फील आने लगी है ना. तो ये पूरी जो जर्नी है ये काफी मेरे लिए इवॉल्विंग प्रोसेस रही पर्सनली. मुझे ये रियलाइज हो गया कि कुछ भी हो, I would want to be like this forever. I would not want to miss out on this puzzle. Yeah, which is very good. I can very much relate to you क्योंकि मैं भी athletics में था, same obsession. But आपके obsession मेरे से बहुत ही ज़्यादा है. But still I can relate with you. जैसे आपने बोले कि first year से जब start किए थे, same with me. And आपका मैंने ये बहुत ज़्यादा observe की ना, ऐसे बड़े स्पोर्ट्स के ग्रुप्स में जब रहते हो, you'll be in such an ecosystem में रहते हो कि आप बहुत कुछ सीख लेते हो क्योंकि उतना बड़ा इकोसिस्टम है, हर बंदा डिफरेंट टाइप के होता है. स्पोर्ट्स में मैंने बहुत ज़्यादा ये मतलब ऑब्जर्व ये किया कि वहाँ पे ना लव से ज़्यादा रिस्पेक्ट रहता है. रेस्पेक्ट इसलिए रहता है कि भाई बंदा मेहनत करे. वी आर कम्प्लीटली सीइंग दैट कि डेली हम प्रैक्टिस में जा रहे हैं. ही इज फाइटिंग, मतलब लिटरली मतलब फाइट कर रहे हैं बंदा ने, 0 to ऐसा उठ रहा है. मतलब मेरे एक बहुत अच्छे सीनियर है, he is like उनका 400 मीटर था सायरा मला. I want to take his name क्योंकि he's a like legend. Yeah, he's a kind of legendary figure. It's not because कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते, जो फाइट करते थे ना, he's a fighter, proper fighter. क्योंकि वो जब स्टार्ट किए थे उनका फर्स्ट ईयर में, उनका 400 मीटर का टाइमिंग था कुछ अराउंड 1 minute 20 seconds के आसपास, which is like लड़कियां भी भाग लेंगे 400 मीटर उतना लड़कियां भी भाग लेंगे. like हमारे तो even more like 1 minute 6 seconds में भाग लेते थे, 1 minute 6, 1 minute 4 में भाग लेते थे लड़कियां. So his performance was zero. He has like 0 reasons to come for practice. But उन्होंने मन बना लिया कि भाई मैं खेलूंगा इंटर, सीधा इंटर. सीन ऐसा था कि इंटर हॉल तक नहीं खेल पाएंगे, उनका स्टैंडर्ड उतना है एंड उनका बॉडी वेट 85 to 90 किलोस का था. उन्होंने इतना फाइट मारा, बाय फाइनल ईयर he is the captain of IIT KGP athletics team. इंटर IIT का. वाओ he's such a great person. ऐसा आइडियल जैसा बंदा. It's not because कि वो पहले से टैलेंटेड है, बट वो जो फाइटिंग स्पिरिट है ना, that wow. एंड मेरे सीनियर्स भी इतने अच्छे थे, एंड मेरे सीनियर्स ऐसे थे ना बहुत मचाऊ थे. वो स्पोर्ट्स भी अच्छे खेलते थे, इंटर में मेडल भी लेते थे, पढ़ाई भी अच्छी करते थे. मेरी एक सीनियर थी श्वेता करके, शी लाइक एनवीडिया में इंटर्न थी उनकी, पीपीओ ईसी डिपार्टमेंट में 9.7 कुछ सीजी, हर साल इंटरेक्टिव में मेडल. सारे यार ये तो कुछ अलग ही सीन है. देन आई रियलाइज कि मैं पहले अपने आप को बैक करता था. मैं एक्चुअली आई वाज नॉट सो मच इंटरेस्टेड इन मतलब इलेक्ट्रिकल बेसिकली, मैं अपने आप को बैक करता था कि खुद को बोलता था कि एथलेटिक्स की वजह से हो रहा है, मेरा कुछ नहीं है. मैंने स्टार्ट कि भाई तुम बैलेंस नहीं कर पा रहा है, तो सही से बैलेंस नहीं कर पा रहा, इसलिए तेरा सा थोड़ा सा सीधी करेगा. बट स्टोरी आई रियलाइज, मैंने सेकंड ईयर से फिर से स्टार्ट किया. आई पिक्ड अप कि मैंने बैलेंस बना लिया, सब कुछ हो गया. एंड ऐसे उन सारे को देख के ना वो रेस्पेक्ट एक क्रिएट हो जाता है. यू स्टार्ट वैल्यूइंग पीपल कि किसको ज्यादा वैल्यू देना है. लाइक कुछ लोगों को देख के ऐसा लगता है ना क्या ही डिजर्व्स रेस्पेक्ट. वो वाला फीलिंग बहुत बड़ा है. मेरे सीनियर्स भी इतने अच्छे थे. आई रिमेंबर दिस वन वेरी मच, मतलब मेरे दिल में वो रह जाएगा. वो ऐसा इंसिडेंट था. मेरा एक सीनियर था वैसे फर्स्ट ईयर, मेरी बॉडी वेट भी इतनी कम थी, बहुत ऐसा दुबला पतला था मैं, 54-55 के आसपास था. बट सेम पैशन बहुत था यार, करना है एथलेटिक्स. तो हमारा वेट ट्रेनिंग होता था. हमारा सीनियर जो बोला है आईबिन देवसिया उनका नाम है, ही इज अ थ्रोअर, लाइक प्रॉपर थ्रोअर. प्रॉपर मतलब उनका थ्रोइंग में प्रॉपर 3 इवेंट्स होते हैं, हैमर, डिस्कस एंड शॉर्ट पुट. ये 3 इवेंट्स होते हैं. तो उनमें उसका मतलब उनका 2 इवेंट्स में गोल्ड, एक सिल्वर था. लाइक शॉर्ट पुट गोल्ड, डिस्कस गोल्ड, हैमर सिल्वर था उनका इंटर आईटी में. मतलब ही इज द टॉप नॉच, मतलब टॉप लेवल पे थे हम. एंड वैसा भारी पर्सनैलिटी, 6'3" हाइट, अराउंड 100+ वेट, मतलब फुल ऑफ स्ट्रेंथ.
आई वॉज लाइक 550 to 53 kilos एंड मैंने क्लीन वेट वर्कआउट करा था, क्लीन करा था मैं, तो आई स्ट्रगलिंग कि 52, मैं तो उनका नाम तक नहीं जानता एंड इवन ही डिडंट नो माय नेम एट दैट पॉइंट, वेरी स्टार्टिंग। तो क्या हुआ, आई वाज सो मच स्ट्रगलिंग, तो उन्होंने क्या किया, पूरा ऐसा क्या बोलते हैं थ्रोइंग टीम को बुलाया, वे हु आर वेरी ह्यूज बॉडी करते हैं उनके, पूरा थ्रोइंग टीम को बुलाया, नहीं तू उठाएगा आज, ऐसा पूरा पंप अप कर दिया, कम ऑन होगा ऐसा बोलते गए। आई वाज लाइक सो पंप्ड अप, ऐसा गूज़बम्स आने लगा, फट मार दिया मैंने। मेरा ऐसा सीन था कि मेरे से 40 नहीं उठ रहा था, मैंने 55 12 reps मारा था उस टाइम। दैट वाज अ हेल ऑफ एक्सपीरियंस कि यार ही इज वेरी गुड एंड आई फील सो ग्रेटफुल, क्योंकि ऐसे लोग मेरी लाइफ में थे, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली देखा जाएगा ना, आई वाज नथिंग इन फ्रंट ऑफ, बट ही स्टिल वांटेड टू हेल्प मी। दैट काइंड ऑफ बिहेवियर एंड दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड, भाई हेल्प करना है बंदे को, यू नेवर नो कि कितना आगे बढ़ेगा वो, यू हैव टू टेक दैट पार्ट कि उसकी लाइफ में तू एक पार्ट बनना है कि यार, जैसे मैंने रिमेंबर किया कि यार मेरे सीनियर थे एबिन, ही वाज सो गुड, आई वांट टू बी समवन इन समवन एल्स लाइफ, कि आई वांट टू बी दैट काइंड ऑफ पर्सन इन समवन एल्स लाइफ। सो वो मेरे में बहुत बड़ा चेंज लाया, दैट इंसिडेंट आई विल नेवर एवर फॉरगेट इन माय लाइफ। Absolutely, yeah. Seniors are our inspiration. We idolize them, and our personalities. We have brought some fraction of their personality in our personality. Yes, definitely. So it's when you are part of such big group, you resonate someone. Yes. You look up to someone, and you observe them closely, and you mold your personality. Yes. As I said, you become the average of 5 people you surround yourself with. Yes. IIT में एटलीस्ट ये एडवांटेज है कि तुम फर्स्ट ईयर में फोर्थ ईयर वाले के साथ तुम पर्सनालिटी को रेजोनेट कर सकते हो यार, तुम फर्स्ट ईयर में फोर्थ ईयर वाले पर्सनालिटी को रेजोनेट कर सकते हो, सो इट्स अ बिग एडवांटेज। Yes. And sports has given all those things. But I think everything who I am today, what I'm gonna do tomorrow is I will give all credit to sports, and that to hockey. Yeah, मैं भी like अच्छा खासा पार्ट दूंगा, मेरी माइंडसेट जो है, मेरी वे ऑफ थिंकिंग जो है, अच्छा खासा पार्ट कर दे भाई। नहीं, मैं आपके पॉइंट में आना है मेरे को, लाइक आप उस पॉइंट पहुंच चुके हैं, मेरे थोड़ी जर्नी बाकी है, आई विल आल्सो कम देयर। तो अपना जितना भी डिस्कशंस हुए, अपने अच्छे खासे रिस्क उठाए लाइफ में, बहुत सारे रिस्क उठाए, प्लेसमेंट में नहीं बैठे, क्योंकि आई नो दैट फील कि प्लेसमेंट में बिना बैठे ऐसा कैंपस का वो जो सेमेस्टर निकालना है टू मच टफ, क्योंकि सबका नौकरी लटकी होती है, एंड दे आर श्योर कि भाई मेरी तो जैसे ही कॉलेज खत्म हो जाएगा मेरे पैसा चालू हो जाएगा, वो वाला फेज क्रॉस करना बहुत टफ है, यू आर सो स्ट्रॉन्ग एट दैट टाइम, एंड ये पूरे फेज में ना आप मतलब सुन के तो ऐसा लग रहा है कि दिल के बहुत सुन रहे हो, सो एंड बट एट द सेम टाइम अगर प्रैक्टिकल नहीं रहते तो फेल हो जाएंगे, दैट्स फॉर श्योर। अब ये जो बैटल हो रहा है ना, दिल दिमाग का बैटल, उसमें जीते कैसे? अभी आई थिंक मैंने एक कोट पढ़ा था सतगुरु का कि मैडनेस इन हार्ट, स्टिलनेस इन माइंड इज व्हाट यू नीड इन लाइफ। तो जैसे मतलब मैंने रिस्क यूजुअली कैसे, मतलब मैंने कैलकुलेटिव रिस्क लिया है ना, कि मतलब मैं जो चीज़ कर रहा हूँ मुझे वही अल्टीमेट, जब मैंने कुछ शुरू करी तो अल्टीमेट गोल वही है, तो उसके अलावा बाकी चीज़ें मायने नहीं रखती। तो जैसे मैंने क्या देखा, लेट्स से मैं अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज में घुस रहा हूँ, ठीक है, या सिविल सर्विसेज में घुस रहा हूँ, तो मुझे प्रैक्टिकल सीधी बात है, मैंने देखा कि यार मेरी जो स्किल्स है एज ऑफ नाउ, मैंने पहले 10th क्लास से पहले कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है लाइफ में, तो मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। तो मेरा सिविल सर्विसेज का प्लान मेरा ये था कि भाई कॉलेज के बाद 4 से 5 साल लगेंगे, प्रॉपर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बेरोजगारी वो तो वो मांगता है, ये जर्नी उतनी कीमत मांगती है। तो मैं मेंटली रेडी था। देन फिर मैंने क्योंकि मैंने कैंपस मैंने कहा कि अभी अगर अपना जो एक कॉलेज का 1 साल भी यूटिलाइज हो जाएगा तो एटलीस्ट 1 साल बाहर का बच जाएगा। तो मैंने कहा कैंपस प्लेसमेंट लेके भी क्या करूँगा, जब मेरे को लेकर भी आना यही है तो लेना क्यों है। बहुत लोगों को मैंने देखा कि वो डर की वजह से, अपने पीयर्स के डर की वजह, मतलब वो कि लेफ्ट आउट ना फील करें, वो लोग जॉब ले लेते हैं, 2-3 महीने जॉब करने जाते हैं और जॉब छोड़ के वापस आ जाते हैं, और इस चक्कर में उनका वो जो कैंपस वाला साल भी खराब हुआ, 3-4 महीने भी खराब हुए, और वापस से वो 0 से शुरू कर रहे हैं, राइट। तो मैंने कहा यार जब जाना ही वही है, जब एटलीस्ट एज ऑफ नाउ आई एम क्लियर दैट आई हैव टू गो टू सी, देन व्हाई टू गो थ्रू बी, है ना। So that was very clear for me. So it was, I would say, कि not a risk, it's like clarity. Right? That clarity, bringing that clarity is too tough. मैंने तो ये बहुत ऑब्जर्व किया कि यार मेरे को ये चाहिए and I'm ready to sacrifice these things. तब ना वो sacrifice नहीं लगता है। हाँ, तब sacrifice, क्योंकि आपकी जो purpose and जो भी goal है इतना short दिखता रहता है कि you don't feel this as sacrifice. उस पार्ट ही नहीं, मैं छोड़ ही दिया। So yeah, जब तो स्टार्टिंग में बोले कि you actually your target is for civil services, but you're like हाँ IAS कर लेते हैं, उसके बाद फिर से अटेम्प्ट देंगे, IAS बन जाएंगे करके।
बट आपके एटीट्यूड तो पूरा ऐसा फाइटर जैसा लग रहा है, विच आर सेइंग कि यार वंस आई एम स्टेपिंग इन समथिंग आई गिव माय ऑल आउट, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना है मेरे को। सर अभी तो आपकी सब कुछ ही प्रॉपर है, लाइक यू हैव सिक्योरिटी, यू हैव फाइनेंस, यू आर फाइनेंशियली एनफ स्ट्रॉन्ग टू टेक दैट रिस्क, क्योंकि आप पहले तो बहुत बड़े रिस्क उठा चुके हो, तो प्रेजेंटली आप यू आर फाइनेंशियली एनफ स्ट्रॉन्ग, सिक्योरिटी भी है, आपके पास सब कुछ है, देन व्हाई नॉट, आप क्यों नहीं कर रहे अभी आईएएस का ट्राई? गॉट इट यार, मैंने जो भी बताया कि मेरा शुरू से क्लियर था कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में अगर सिलेक्शन होता भी है तो मैं जाऊँगा नहीं, बिकॉज अगर मैं जॉब में चला गया तो सिविल ड्रीम छूट जाएगा। तो मेरे को क्लियर था कि मेरे को डिस्ट्रैक्शन चाहिए नहीं। मैं इवन गेट एग्जामिनेशन इसलिए दे ही नहीं रहा था, केवल इसलिए कि अगर दे दिया तो हो सकता है नौकरी लग जाए, और नौकरी लग जाए तो शायद जाना पड़े, और जाना पड़ गया तो फिर डिरेल हो सकते हैं। तो ऐसे डिस्ट्रैक्शन क्रिएट ही नहीं करने, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को वही पता चलेगा जो मैं उन्हें बोलूंगा। तो मैं अपने पेरेंट्स को बताऊंगा ही नहीं कि मेरी नौकरी लग सकती है, तो वो मेरे को भी पूछेंगे भी नहीं। बट मैंने जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो जो ऐसे मैंने बताया कि मेरे को जो आंख में इशू आया, इट ब्रॉट मी ऑन माई नीज बेसिकली। That time it was a curse. It felt like a curse. It felt like a disability that I couldn't read more than half an hour. I was someone who can read, like who can study long hours, but now I was in a position where I couldn't read, and it took me a lot of time to get it diagnosed, get it almost to that to good level. And during the time when I was having that phase where I was struggling with recovering my complete health, I came to that conclusion that function remains same, variable changes. If I'm not liking the function, there is no point of changing variable. So somewhere I could extrapolate that probably that service also is gonna be that way. It is on a higher status level, but it would be, मतलब it will be also painful that way. तो वहां पर मुझे जब ये थोड़ा क्लैरिटी हुआ कि यार ये चीज मेरे लिए शायद उतनी सूटेबल नहीं हो, और दूसरी बात अगर सूटेबल होती भी तो मेरी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही थी, राइट? दैट डिसेबिलिटी हैज काइंड ऑफ पुट मी डाउन. नाउ आई सी इट एज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. दैट पीरियड ऑफ टाइम ड्रीम गॉट शैटर्ड, बट नाउ आई सी दैट हैविंग दैट प्रॉब्लम मेड मी टू रीइवैल्यूएट माई डिसीजन. Otherwise, I would have never reevaluated. As I said, that once I've made a decision, I don't reevaluate it. I'll make it happen, and then I'll think कि ठीक है अब यहाँ से क्या कर सकते हैं. So I have that beginner mindset. Like अगर मान लो जैसे the journey that I am, and I'm very certain of it. Let's say hypothetically, if I got some uncertainty, I'm okay to begin another journey from scratch. I don't mind beginning another journey from scratch. So that is one of the reasons that I dropped the plan for pursuing civil services. I think I have reached to a conclusion that if you want to live in a country like India, you need two things: influential network and wealth. If you are in a government job, you don't make wealth. है ना, corruption करो तो पता नहीं, but अगर if you are honest, you don't make enough money, है ना, very little money. तो जब पैसा नहीं है तो you can't enjoy the luxuries of life. Second, influential network that you may have, right? Influential network makes you feel secured. I feel being on an entrepreneurial journey, you get an opportunity to build both. You get an opportunity to build influential network because you help people and you make money by creating an impact. So I came to this conclusion, this middle ground, that this is a gray area that I want to operate in. Usually everybody, honestly speaking, at the core, everybody wants both. They want to make money and they want an influential network. Why usually don't people pursue? Because there is no playbook that exists. For civil services, playbook exists. ये किताबें पढ़ो, civil services निकल जाएगा. बढ़िया launching platform, आपका मतलब you will be recognized, you will be famous. Similarly, अगर आपको पैसा बनाना है, कोडिंग में जाना है, MBA में जाना है, प्लेबुक एग्जिस्ट करता है. कैट लिखो, MBA करने जाओ या कोडिंग करो, आप अच्छी कंपनीज में जाओ, so you make money. But then you miss out on status, you miss out on identity. आपको लगता है कि यार पैसा तो बना रहा हूँ, मैं जानता कोई नहीं है ना. तो ये मतलब after this hit on my health, I got time to reflect, and now I feel that I'm in a blessed position. That I'm on a journey where I'm clear that why I'm moving forward. I don't feel lost now. Yeah. But आपकी पूरी ये जो conversation रही, आप जो जर्नी बताए ना, I feel jealous about you on one point कि यार फाइटर बहुत हो यार आप, कि लाइक you're kind of a person कि यार ठीक है, मतलब आने में कुछ भी देख लेंगे, फ्लो में देख लेंगे, पत्थर मारो कुछ भी हो रहा है, I am that strong कि मैं अगर बंद बना लिए तो करूँगा ही करूँगा.
So just I'm like very much jealous for that quality which I'm trying to build upon कि मेरे को उतना strong बना. Strong in the sense it's not about efforts. When it comes to a point where why should I give my efforts? वो अगर reason को मैंने sort out कर लिया and I now have a clarity. Now with this conversation I got that thing कि यार आपके reason अगर strong हो ना effort तो आएगा ही आएगा. Yes. There is no मतलब उसके लिए अलग से फिर BT लेने की जरूरत नहीं है. कहते हैं ना why is clear तो how clear हो जाता है. हो जाता है automatic. why clear करना बहुत जरूरी है. Because ऐसे समझो आपको कोई भी काम करने के लिए ना एनर्जी चाहिए. अब एनर्जी कहाँ से आएगी? फ्रॉम द रीजन दैट यू हैव स्टार्टेड, है ना. अगर रीजन स्ट्रांग है तो आपको इनफाइनाइट एनर्जी है. रीजन स्ट्रांग नहीं है तो आपको सुबह उठने का भी मन नहीं करेगा, है ना. तभी तो देखो जॉब में काफी लोग ऐसे परेशान इसलिए हो जाते हैं कि भाई यार उतने ही पैसे आ रहे हैं यार, क्यों ज्यादा मेहनत करते हैं, है ना. मान लो वो आपका खुद का बिजनेस है, मान लो आप चाय बनाते हो, ठीक है. आपकी 1000 चाय बिक गई सुबह से, आपको उम्मीद लग रही है कि आपको 1000 कस्टमर आ गए, भाई आप कूदोगे, आप में भरे बीमार हो, आप 1000 चाय ऐसे खुशी खुशी बनाओगे, सही है ना. सो मतलब दैट फिजिकल एनर्जी इज नथिंग इन कंपैरिजन टू द एनर्जी दैट यू विथड्रॉ फ्रॉम द रीजन. यस, है ना. आपको यू डोंट वांट टू रन आउट ऑफ एनर्जी एंड दैट्स व्हाई यू नीड अ स्ट्रांग पर्पस. सो जस्ट व्हेन यू थिंक ऑफ योर पर्पस, वापस से एनर्जी आएगी. रात के 2 बजे भी आपको वो एनर्जी आ जाएगी अगर आप यू जस्ट थिंक ऑफ पर्पस कि भाई मैंने क्यों शुरू किया है. सही यस, सही बात है. सो या अभी तो आप जैसे बात कर रहे हो मेरे को तो लग रहा है कि यार सो मच ऑफ ज्ञानी मैच्योर टाइप ऑफ पर्सन. सो मैं आपको ये फाइनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ठीक है आपको इतना क्लैरिटी तो मिल गई लाइफ, लाइक गुड एनफ क्लैरिटी तो मिल गई, बट स्टिल डू यू रिग्रेट अबाउट एनीथिंग इन योर लाइफ? Do I regret anything about my life? क्योंकि देखो आप सारे ना जितने भी नेगेटिव है उनको पॉजिटिव बदल दिया. यू जस्ट सेड इट एज यू सेड इट एज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोल के आप खत्म कर दिया. बट स्टिल डू यू रिग्रेट एनीथिंग अबाउट लाइफ? हाँ, मैंने जैसे स्कूल टाइम में सो आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ शॉर्टकट्स. ओके. In my till now, wherever I think that I can take shortcuts, I have taken shortcuts. जैसे मतलब हमें नोट्स बुक बनानी होती थी 10th क्लास तक, तो आई यूज्ड टू डेलीगेट दैट वर्क. तो जैसे अगर हम जैसे हम स्कूल में थे, हमारे स्कूल में जैसे 2 नए लड़के आए तो उनको मैंने ऐसे दोस्ती कर लिया. मैंने कहा देख मैं तेरी ना एक लड़की थी हमारी क्लास में, मैंने उससे दोस्ती कराऊंगा तो मेरा हिंदी का नोट्स बना के रखियो. तो एक मेरा हिंदी का नोट्स बनाता था, एक मेरा SST का नोट्स बनाता था. मैं अपनी प्रैक्टिकल फाइल अपनी सिस्टर से बनवाता था. जैसे कुछ भी ऐसे बहुत सारे ऐसे काम रहे जहाँ पे मैंने बहुत शॉर्टकट्स लिए, तो मुझे लगता है उसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है. अब मुझे वो कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करनी है. अगर मैंने उस चीज़ को खुद से लिखी होती हो सकता है मेरी स्किल स्पीड उन सब में फ़ायदा मिलता, बट मुझे उस वक्त उनका इतना रिलेवेंस नहीं समझ में आता था, तो मैं इतना कभी टेंशन नहीं दिया. एक तो ये कि काफ़ी मैंने कई जगह पे बहुत शॉर्टकट लिए जहाँ पर मुझे लगता है कि एनर्जी प्रिजर्व कर सकते हैं, जिसको मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिया मैंने. और सेकंड थिंग मुझे लगता है कि जैसे मुझे लगता है कि अब वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज में कैसे ना सारी इवेंट्स टर्न आउट कि मुझे अपनी हेल्थ का और बेहतर ख्याल रखना चाहिए था. जैसे स्पोर्ट्स में मैं ज़्यादा ऑब्सेशन हो गया, तो मैंने मतलब अपनी डाइट वगैरह अच्छे से नहीं रखी, तो मुझे इंजरीज हुई. तो इंजरीज की वजह से बहुत सारी मतलब पूरे टर्मोइल क्रिएट हुआ. वो मुझे एक थोड़ा बहुत लगता है कि वहाँ पर मैं थोड़ा सा और माइंडफुल हो सकता था उन चीज़ों को लेकर के. अपने एग्रेशन पर तो कहते हैं ना कि जो मैडनेस है उसको थोड़ा सा रोक सकता था. वो जो थिन लाइन है वो मैंने कई बार क्रॉस कर दी है कि भाई इससे इतना रुक जाता तो मैं बैलेंस में रहता. मैंने थोड़ा सा क्रॉस कर दिया तो बैलेंस टूट गया. सो वो टूटा जैसे हेल्थ के साथ इन द जर्नी ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड देन इन स्पोर्ट्स आल्सो दैट थिन लाइननेस. बट नाउ व्हेन आई लुक बैक आई फील इट ऑल वाज मेंट टू हैपन. सो आई थिंक आई एम इन एज ऑफ नाउ आई एम इन अ गुड प्लेस, इन अ ब्लेस्ड प्लेस. बट ऐसे तो बहुत सारे रिग्रेट्स हैं और भी बहुत है, बट जाने दो, इस प्लेटफॉर्म के लिए तो नहीं है बिल्कुल. Thank you, Ben, for making my passion more fruitful in the first day itself. मतलब मेरा first podcast है, like ये conversation तो I'll just remember for my entire life, क्योंकि ये conversation है ना, even without a podcast, this is a very much needed conversation for me right now. And at the same time मैं audience को भी थोड़ा सा clarity दे पा रहा हूँ. And after your conversation I can say to audience कि भाई देखो जो होना था वो तो हो जाएगा, क्लैरिटी रखो, जो करना है रीजन ढूंढो पहले कि मैं क्यों कर रहा हूँ.
एट द सेम टाइम जो भी रिस्क उठाना चाहते हैं टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क. ये नहीं कि मेरे को लगा मैंने छोड़ दिया सब कुछ चला गया मैं. नो, नॉट लाइक दैट. कि कैलकुलेटेड रिस्क लो, अपने लाइफ में एक्साइटिंग रखो. नहीं, मुझे लगता है जैसे तुमने जो बोला कैलकुलेटेड रिस्क, और क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग को पता नहीं होता किस चीज़ के लिए फाइट मारे, विच इज़ फेयर. 99% लोगों के साथ है, सबके मेरे साथ एवरीबडी कि आई डोंट नो कि किस चीज़ के लिए फाइट मारे. तो जो सामने दिख रहा है उसके लिए फाइट मारो, बिकॉज आप ए से सी जैसे सब लोग आपसे ये पूछेंगे कि ये तेरा सी क्या है. हाँ. नहीं पता भाई सी. हाँ. तो बी पता है ना, तो बी जाओ, बी से सी देखने लग जाता है. बट बी फास्ट जाओ, है ना, बी फास्ट जाओ. बी तक पहुंचने में तुमने सारी एनर्जी गवा दी, तो भाई सी देख यू वुड नॉट वांट टू लुक एट द सी आल्सो. तो अगर ए से बी फास्ट चले जाओगे ना तो बड़ा टाइम मिल जाता है. और कहते हैं ना कि जब आप एक लेट्स से आप एक माउंटेन पे चढ़ोगे तो उसके जो टॉप से आपको एक नज़ारा दिखता है वैली का, एंड आपको तब उस नज़ारे से समझ में आता है कि ये जो वैली का ये वाला पोर्शन है ना, इट्स अ गुड प्लेस टू स्टे इन, टू लिव इन. तो वो नज़ारा टॉप पे ही जाके आता है. भले ही आप वैली में ही रहना चाहते हो, बट किस वैली में रहना चाहते हो उसके लिए आपको बीच जाना पड़ेगा, और बीच जाके उतरना पड़ सकता है. जैसे तुमने कहा अभी मान लो मैं सर्विस में गया एंड देन आई माइट कम बैक, राइट, बट जाना बहुत जरूरी था, है ना, क्योंकि वहां से पता चला कि सीख क्या है. सही. ठीक है. तो मुझे लगता है कि अगर सी ना दिखे तो बी की तरफ फास्ट जाओ. बी की तरफ फास्ट जाओ. फास्ट एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग. Fast execution. Yes, this is the main point. Keep moving. Fast execution is everything. That's what our PayPal is saying. So finally, thank you so much. It was lovely meeting you and having a conversation with you. Definitely.